नमस्कार, वेलकम टू आरसीआई's नवशिखर चैनल। आप सभी का आरसीआई के नवशिखर चैनल में स्वागत है। आज का हमारा चर्चा का विषय है कॉजेज एंड ट्रीटमेंट ऑफ प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस एंड फॉर दिस डिस्कशन वी हैव एक्सपर्ट डॉक्टर अदिति सिंह। शी इज आई स्पेशलिस्ट वर्किंग इन नंदा आई केयर सेंटर न्यू दिल्ली। शी विल बी टॉकिंग अबाउट द टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन। तो मैं अपने व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूँगी उनके इस रिगार्ड में जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेरीज हैं, तो हमारे टोल फ्री नंबर कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800112008 265111613। हमारा फैक्स नंबर है 265111609। तो आइए अपने एक्सपर्ट से आज के विषय के बारे में जानकारी लेते हैं। वेलकम मैम। जैसे कि आज का हमारा डिस्कशन जिस टॉपिक पे होगा, इट्स रिगार्डिंग कॉजेज एंड ट्रीटमेंट ऑफ प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस। सो हम जानना चाहेंगे सम few basic informations regarding the blindness. Causes of blindness, एक preventable and non-preventable. What today we would like to talk about is preventable causes of blindness, जो कि हम prevent कर सकते हैं. Today in world there are at least 7 million people who are blind and 1 in 40 मतलब हर 40 आदमी में एक आदमी को या तो visual impairment होती है या वो blindness उनको होती है. The causes which can be prevented, they are the first leading cause of preventable blindness in the world is cataract. Still, with so much research in surgeries and developed techniques, we still have cataract as the number 1 leading cause of preventable blindness in both developed as well as developing countries. The second and the other important causes of preventable blindness are trachoma, then visual impairment, refractive errors जो होते हैं अगर सही टाइम पे चश्मा ना लगाया जाए, then river blindness and diabetic hypertensive retinopathy and age related changes. Now we will look at the slide. Estimated 37 million people worldwide are completely blind. And there are 124 million people with very low vision. So 90% of blind people, they live in poor countries or developed countries like South Africa, Southeast Asia and India. 1.4 million children under the age of 15 are blind. More than 82% are at least 50 years old. So now every year if we see 1 to 2 million people will go blind. And out of all these 90% are preventable. अगर सही टाइम पे हम उसको ट्रीट करें, we can prevent 90% of the blindness in the world. And there are at least 11 million people in Southeast Asia region, 9.3 in the Western Pacific region and 6.8 in the Africa. So did you see how the area is concentrated towards the Eastern world? 75% of this blindness is treatable in developing countries. And there is also a female predisposition that females have a higher risk of visually impairedness than males. Without proper interventions, the number of blind will double to 75 million by 2020. So now, what are the causes of preventable blindness? As I explained, number 1 is cataract, number 2 is trachoma, river blindness or onchocerciasis, refractive errors and low vision. Cataract I have already told you, that is the leading cause. Glaucoma is जिसमें आँखों का pressure बढ़ जाता है. I will explain each one later. Then there is diabetic retinopathy, hypertensive retinopathy, age related macular degeneration and vitamin A deficiency. To start about trachoma. ट्रकोमा एक ऐसा डिजीज है जो कि एक फ्लाई के काटने से होता है. इट इज अ वेरी सिंपल डिजीज कॉज्ड बाय अ टाइनी पैरासाइट कॉल्ड क्लेमाइडिया ट्रेकोमैटिस. देयर इज अ बाइट ऑफ दिस फ्लाई ऑन द eyelid which causes deformity of the eyes and hence there is scratching of the cornea, scarring and ultimately the person becomes blind. The treatment is very simple. If given in time, we can prevent blindness. Tetracycline or erythromycin antibiotic cream applied 4 times a day or with a single tablet of azithromycin. The primary prevention is
that we can have same simple hygiene measures, making clean water freely available, and for those already affected there are multiple surgeries which can be done. So I would like to explain about trachoma. This trachoma is caused by a simple parasite Chlamydia trachomatis, and जैसे मैंने आपको बताया ये एक फ्लाई, एक मक्खी के काटने से होता है. ये इन्फेक्शन चाइल्डहुड में एक मक्खी के काटने से शुरू होता है और तब हम इतना ध्यान नहीं देते क्योंकि इसके सिम्टम्स एंड साइंस आर वेरी सटल एंड इवन द फैमिली नेग्लेक्ट्स इट. उसको बस इचिंग होती है हल्की सी, उसको लगता है उसकी आंखों में कुछ है. इसको बोलते हैं फॉरेन बॉडी सेंसेशन. एंड एज द चाइल्ड ग्रोज, दैट इज इन सेकेंड टू थर्ड डेकेड ऑफ लाइफ, दैट मीन्स 18 to 20 ईयर्स ऑफ एज में उसको सिम्टम्स ज़्यादा हो जाते हैं. मतलब उसको आंखों से पानी आने लगेगा, उसको लिड जो होती है, आई लिड जो होती है वो सूजन हो जाती है और उसका आंखों में से थिक वाइट डिस्चार्ज भी आना शुरू हो जाता है. अल्टीमेटली इफ नेग्लेक्टेड स्टिल एंड द ट्रीटमेंट इज नॉट गिवन येट, द चाइल्ड ग्रोज अप एज एन अडल्ट विद दीज सिम्टम्स एंड व्हेन ही इज अराउंड 40 to 45 ईयर्स ओल्ड ही टर्न्स ब्लाइंड, क्योंकि वो रिपीटेड स्क्रैचिंग से, कॉर्निया जो हमारा ये काली पुतली होती है इस पे स्क्रैचिंग से उसके स्कारिंग बन जाता है. स्कार मतलब कैसे कोई पुरानी चोट है, वो जख्म बार बार अगर उसको आप स्क्रैच करते जाओगे तो वो कॉर्निया जो है वहाँ पे एक स्कार बन जाता है, और जब कॉर्निया में स्कार बन जाता है तो द ब्लाइंडनेस अकर्स. मैम जैसे आपने बताया कि ट्रकोमा में एक मतलब बचपन में ही एक फ्लाई के काटने से होता है. yes. और थर्ड डिकेड में उसके सिम्टम्स ज्यादा दिखाई देने लग जाते हैं. yes. तो इज देयर एनी रीजन कि ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स में इतना लॉन्ग ड्यूरेशन? बहुत सटल है, ये ऑर्गेनिज्म की ही बात है. दैट ऑर्गेनिज्म इज लाइक दैट, हमारी बॉडी में आ जाता है वो एक बार ही, उसका लाइफ साइकिल इतना रहता है. बहुत सटल सिम्टम्स रहते हैं शुरू में जो एक डॉक्टर पिकअप कर सकते हैं, और पेरेंट्स और नियर बाय विलेजर्स जो होते हैं, ये विलेज सेटअप में होता है ज़्यादातर, इसलिए ये नेग्लेक्टेड भी रहता है. ये जो फ्लाई है ये ओवर क्राउडेड अनहाइजीनिक एरियाज में रह जाते हैं. तो ये फ्लाई जो है ये कॉमन ही उन एरियाज में जहाँ मेडिकल ट्रीटमेंट इतना अवेयरनेस इतनी नहीं है जी. और अगर हम इसको टाइमली वहीं क्योर कर दें विद 4 times एंटीबायोटिक ड्रॉप्स एंड ओरल एंटीबायोटिक्स, इट विल कॉज नो प्रॉब्लम्स इन दी 30s and 40s. द स्कारिंग कैन बी प्रिवेंटेड, कॉर्नियल स्कारिंग. एंड लाइक दिस इफ एट ऑल नहीं हुआ फिर भी कोई बात नहीं, 40-45 ईयर्स में भी आप डॉक्टर के पास जाओ तो स्टिल जो सर्जरी होती है वो लिड को ठीक कर दिया जाता है. लिड जो है वो सूजन हो गई और उसमें स्कारिंग हो चुकी है. अगर कॉर्निया स्कारिंग हुई है यू कांट प्रिवेंट ब्लाइंडनेस, पर अगर लिड्स उल्टा हो गई हैं, सूजन हो गई है, तो लिड्स को काट के उनकी ऑपरेशंस आजकल होते हैं जी. द नेक्स्ट इज रिवर ब्लाइंडनेस. ये भी एक फ्लाई के काटने से ही होता है. ऑन्कोसर्कियासिस नाम है, कॉमनली इसको इजिप्शियन फ्लाई बोलते हैं, ब्लैक बाइट बोलते हैं इसको. मेक्सिको में भी ज़्यादा कॉमन है, इंडिया में भी है. और इसमें द वर्म इज ट्रांसफर्ड थ्रू द बाइट ऑफ द फ्लाई एंड द फ्लाई ओनली स्टेज इन द ह्यूमन होस्ट. एंड दिस फ्लाई इज वेरी कॉमन इन फास्ट फ्लोइंग रिवर्स. In fact, the disease prevalence is so much that lot of communities started traveling from the fertile grounds of the rivers to less productive higher grounds. And again same prevention is you can give that larvicide sprays you can give, and that can be sprayed in the water. And also once a year ivermectin is the drug, company name they have now this donated by Merck Pharmaceuticals. They are giving Mectizan as a part of worldwide elimination program, and this ivermectin drug can be taken once a year, and it acts as a prevention of blindness. Once the disease has set in, again the treatment is ivermectin tablet. The next cause, very common, which we see is refractive errors. Refractive errors which we see, either the person can be short sighted or he can be far sighted. That is myopia बोलते हैं, जिसको पास का नज़दीक दिक्कत से होता है, या फिर hypermetropia. So low vision is defined as जब आपका vision is in between 6/18, that means what a normal person can see at 18 meters, you are able to see at 6 meters. And near blind is what a normal person can see at 18, he is able to see only at 6 meters. The vision between 6/18 to 3/60 is low vision. Below 3/60 we term as blind. Those with pure refractive errors,
with no organic causes can be corrected by the use of glasses and other optical devices. Those with low vision can also benefit from the low vision aids, and these help in improving their lives. There are many causes of low vision other than refractive errors, which I will talk about later, like glaucoma and other hypertensive and retinopathy changes. They also cause vision problems, which the primary prevention will depend upon the cause. अब छोटे बच्चों को ये कॉमनली मैंने देखा है कि आई प्रॉब्लम है, बच्चे को नहीं दिख रहा है ब्लैक बोर्ड, बहुत पास से लिख रहा है, ये कंप्लेंट्स आती हैं जब हम उनको नंबर दे देते हैं और उनको चश्मा एडवाइस करते हैं, वो चश्मा नहीं लगवाते कि दे सोशली इट इज़ नॉट एक्सेप्टेड कि चश्मा हम नहीं लगाना चाहते. ये अगेन एक कारण है, एक आँख में नंबर है, एक आँख में नंबर नहीं है, चश्मा उन्होंने समय पर नहीं लगाया. प्रॉब्लम क्या होती है, दूसरी आँख भी लेजी आई बन जाती है एंड द चाइल्ड कैन टर्न ब्लाइंड बाय द टाइम ही इज 18 to 19 years old. सो ये इसीलिए एक प्रिवेंटेबल कॉज है. अगर हम सही समय पे चश्मा लगाएं, इतना बिल्कुल स्ट्रिक्ट होके बच्चे को वो 5-6 साल चश्मा लगा दें, पावर बढ़ेगी भी नहीं और ब्लाइंडनेस तो होगी ही नहीं. मैम, व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड दीज रिफ्रैक्टिव एरर्स? मतलब ऐसे पहले क्या कॉजेज हो सकते हैं कि जिससे रिफ्रैक्टिव एरर? बहुत कॉजेज होते हैं. अब ये टीवी पास से जो कॉमनली मैं आपको वो बताऊंगी, जो पेशेंट्स बोलते हैं कि टीवी पास से देखने से इसको चश्मा लग गया जी, और फिर वो बोलते हैं ये कुछ खाता नहीं है इसलिए चश्मा लग गया. सो दीज आर वेरी रेयर कॉजेज. द फर्स्ट कॉजेज मायोपिया है, जेनेटिक हेरिडिटरी कॉजेज ज़्यादा हैं. एंड माँ बाप को अगर चश्मा लगा है बचपन में, देर इज मतलब 70 to 80% चांस है कि बच्चे को भी लगेगा. और अगर हाइपरमेट्रोपिया है, मतलब उसको पास का दिख रहा है अगेन दूर का, इसके भी कई कारण हो सकते हैं. मसल्स बच्चे की वीक है, या कोई कंजेनिटल कैटरैक्ट है, या कोई और तकलीफ है. तो ये जो रीजंस हैं ये अनक्लियर हैं, बट मोस्टली इफ द पेरेंट्स आर हैविंग, देन डेफिनेटली द चाइल्ड इज गोइंग टू हैव विजुअल problems. Is this the condition degrading condition? No, it is not degrading. सही समय पे चश्मा लगा लिया जाता है तो मसल को आराम मिल जाता है. अगर आप चश्मा नहीं लगाओगे, मसल और थकती जाती है और थकती जाती है और स्ट्रेन करती है, तो चश्मे की पावर और बढ़ती जाती है. तो it is So just we can prevent it. yes 100% you can prevent it. The next cause which we can talk about is cataract. इतना आज हमारे इंडिया कंट्री में, स्पेशली इंडिया में, फेको टेक्निक्स आ गई हैं. कैटरैक्ट टाइम पे डिटेक्ट हो रहा है. बहुत ऑर्गेनाइजेशंस फ्री कैंप्स कर रही हैं और कैटरैक्ट ट्रीट कर रही हैं. फिर भी टुडे कैटरैक्ट इज स्टिल कंसिडर्ड नंबर 1 लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस, प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस. सो कैटरैक्ट, व्हाट हैपेंस इन कैटरैक्ट, जो लेंस है हमारी आंखों का, दैट बिकम्स ओपेक एज द आई एजेस. तो इट इज अ डिजीज ऑफ एज. This is prevalent in areas where there is environmental and disease factors like smoking, diabetes, and diet contribute to cataract development. कुछ बच्चों में भी cataract होता है, that is called congenital cataract. They are born with cataracts. They are different entity, but mostly what we see cataracts in adults is due to age-related changes. Cataract is, there is a very simple surgery. In our country we have got the latest techniques, latest machines, lot of private, lot of government setups, they are doing this surgery, but we have to do this surgery in time. Cataract भी आगे चल के, उसको बोलते हैं काला मोतिया, सफ़ेद मोतिया, तो कैटरैक्ट भी आगे चल के पक सकता है और पकने के बाद कैटरैक्ट भी फूट सकता है और फिर हम उसको प्रिवेंट नहीं कर सकते ब्लाइंडनेस को. जी मैम, जिससे वी आर टॉकिंग अबाउट दीज कंडीशंस एंड यू आर टेलिंग कि ये कंडीशंस बच्चों में भी होती हैं और एडल्ट्स में भी होती हैं, तो इनके सिम्टम्स या ऑनसेट में कुछ डिफरेंस होता है सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई द डिफरेंस? हाँ, जो कंजेनिटल कैटरैक्ट है वो बहुत अलग है. वो शुरू से ही बच्चा जो है वो बाय द टाइम द चाइल्ड कम्स टू यू 2 या 3 साल का होता है, वो ब्लाइंड हो जाता है बिकॉज उसको दिख ही नहीं रहा. तो वो 2 साल तक तो इतना नहीं हम समझ पाते. बट येस, अगर आपने टाइम पे उस बच्चे का पीडियाट्रिक और आई चेकअप किया है तो वो तो 2 महीने से 4 महीने में भी पिकअप हो सकता है विद अ सिंपल टॉर्च लाइट. जी हाँ. और ओल्ड एज का जो कैटरैक्ट होता है वो तो नॉर्मल विजन है. एज द एज एडवांसेस वो कहते हैं हमें धुंधला दिख रहा है और तब जाके चेक कराते हैं तो कैटरैक्ट उनको डेवलप हो गया होता है. तो मैम, जैसे ये जो कंडीशंस है, कैटरैक्ट है जो कि आपने बताया कि लीडिंग कॉज है ब्लाइंडनेस का, हाँ. और ट्रकोमा की हमने बात करी, रिवर ब्लाइंडनेस की हमने बात करी, हाँ. तो कुछ और कंडीशंस भी होती हैं. हाँ, जैसे अब ग्लॉकोमा दिखाना चाहूंगी मैं आपको. स्लाइड देखते हैं. ग्लॉकोमा जो है बहुत इंपॉर्टेंट एंटिटी है
और ग्लोकोमा, बेसिकली ग्लोकोमा का मतलब ये है कि आपकी आईज के अंदर प्रेशर बढ़ गया है। क्रॉनिक ग्लोकोमा, एक्यूट ग्लोकोमा दो तरह के होते हैं, लेकिन क्रॉनिक ग्लोकोमा ज़्यादा कॉमनली देखा जाता है। उसमें जो हमारे आईज में एक फ्लूइड होता है वो बनता तो नॉर्मल ही रेट से है, लेकिन हमारे आँख से वो फ्लूइड बाहर निकलने का रास्ता उसका ब्लॉक्ड हो जाता है। इसके कई कारण हो सकते हैं, हमारी आँखों का शेप कैसा है या हमारे और कोई कंडीशंस हैं हमारी बॉडी में, और जब वो ब्लॉक हो जाता है तो वो फ्लूइड इकट्ठा होकर प्रेशर करने लग जाता है ग्लोकोमा में, और वो प्रेशर जो है ऑप्टिक नर्व ही एक बस ऐसी चीज़ है हमारी आँख में जो रिप्लेस नहीं हो सकती। आई ट्रांसप्लांट सब कुछ हो गया है आज, लेकिन ऑप्टिक नर्व को हम रिप्लेस नहीं कर सकते। तो ये ऑप्टिक नर्व पे ये प्रेशर इतना तेज पड़ता है कि जो उसके रेटिना के सेल्स हैं वो खराब हो जाते हैं एंड द पर्सन टर्न्स ब्लाइंड। तो ग्लोकोमा इज कम्प्लीटली प्रिवेंटेबल एंड ट्रीटेबल इन टाइम। अगर हमने उस प्रेशर को उसी समय दवाइयों से रोक लिया तो हम उस ऑप्टिक नर्व को बचा सकते हैं। लेट्स लुक एट द स्लाइड। Chronic glaucoma is an important cause of blindness throughout the world. There is evidence that blindness from this cause could be reduced by just application of existing knowledge and awareness. Glaucoma requires careful, continuous and lifelong supervision, as I told you, with some eye drops as well as tablets. And also it is insidious. बहुत धीरे धीरे ये ग्रो करता है, प्रोग्रेस करता है, हम समझ नहीं पाते, and it is both in chronic in onset as well as progress and requires active measures to improve its identification. So if undiagnosed or inadequately treated, visual field defects due to optic atrophy are progressive and irreversible. Optic atrophy is what I told you. The optic nerve cells are getting damaged due to increased pressure of the fluid. Adequate surveillance of large numbers of glaucoma patients in hospital, general ophthalmic clinics is not possible. They should have a proper setup with sophisticated equipments for checking glaucoma. An improved standard of management and follow-up is being provided. The system has been designed to be suitable for expansion into a regional glaucoma service. We need little hi-fi instruments and technology to diagnose and treat glaucoma. At present, research in the problems of data recording and analysis are a priority, but the work is going on in this direction. There is also an entity called congenital glaucoma. Congenital glaucoma is also called ब्यूफ्थैल्मोस। छोटा बेबी पैदा होता है, ये मिसडाइग्नोस हो जाता है, छूट जाता है, लगता है अच्छा काली पुतली बड़ी है बच्चे की, कोई बात नहीं, आगे जाके पता लगता है 2-4 महीने बाद बहुत पानी आ रहा है आंखों से। सो कंप्लेंट ये होती है आंखों से बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है और काली पुतली उनकी अलग बहुत बड़ी दिखती है। तो इस वजह से क्या होता है कि हम सोचते हैं अच्छा ठीक है पानी आ रहा है, कॉमन बात है, हम 1 साल तक डिले कर देते हैं। अगर हम 4 से 6 महीने की उम्र में ये कंप्लेंट्स हैं कि काली पुतली इसकी बहुत बड़ी है और बहुत ज़्यादा आंखों से, दोनों आंखों से पानी आ रहा है, सही समय पर अगर हम किसी ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट या आई स्पेशलिस्ट को दिखाएं तो ये कंजेनिटल ग्लोकोमा भी एक कारण हो सकता है जो कि ट्रीटेबल है। इसको छोड़ दिया जाए तो अगेन प्रेशर इतना बढ़ जाता है उस फ्लूइड का कि ऑप्टिक नर्व जो है वो उसके सेल्स डैमेज हो जाते हैं। एक बार ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है तो फिर वी कैन नॉट प्रिवेंट ब्लाइंडनेस। मैम यहाँ पे आपने बात की ऑप्टिक नर्व डैमेज की, तो ऑप्टिक नर्व डैमेज जो होती है वो किसी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम डैमेज होती है या कॉन्जेनाइटली भी डैमेज हो सकती है, और क्या रीजंस होते हैं उसके डैमेज होने के? कंजेनाइटल डैमेज यही होगा, अगर कंजेनाइटल ग्लोकोमा है तो उस प्रेशर से डैमेज हो गई नर्व, लेकिन ये ऑप्टिक नर्व पूरा एटलीस्ट इट टेक्स 5 to 10 years टू गेट इट डैमेज्ड। विदाउट ट्रीटमेंट तो और जल्दी डैमेज हो जाती है और इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। तो अगर हम उस प्रेशर को कंट्रोल कर लें दवाइयों से और सर्जरी से भी, आजकल सर्जरी हो गई है ग्लोकोमा में, सिर्फ हल्का सा छोटा सा एक लेज़र, एक लाइट बीम होती है, उस लेज़र को हम डालें उसके ऊपर और वो जो रास्ता जहाँ ब्लॉक्ड है वो रास्ता खुल जाता है, उसको जला देता है लेज़र उस पॉइंट को, फ्लूइड बहने लगता है, प्रेशर कम हो जाता है। दूसरी सर्जरीज ये भी हैं कि अगर आपने थोड़ा देर से दिखाया और ट्रीटमेंट आप नहीं करा पाए, दवाइयों से नहीं हो पा रहा, तो ट्रेबेक्टोमी, TRABECLU, ट्रेबेकुला उसकी जगह है रास्ते की, उसको TOMY हमेशा मतलब होता है काटना, तो उसको काट दिया जाता है उसको और वहां से उसका कैनाल बना के रास्ता फ्लूइड का निकाल दिया जाता है। इससे कम्प्लीटली ट्रीटेबल है। अब ये किस समय पर आप गए, तब तक क्या ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गई है या हो रही है, ये आपको उसका फ्यूचर जो प्रोग्नोसिस है उस पर डिपेंड करता है। जी,
Ma'am, like we are talking about these conditions of the blindness, so we know that the physiological changes जो होते हैं, physiological changes वो affect करते हैं, Yes. but जो anatomical changes होते हैं क्या वो भी affect करते हैं इन conditions को? हाँ बिल्कुल, आपकी आँख का शेप कैसा है, एक होता है नैरो एंगल ग्लोकोमा, ओपन एंगल ग्लोकोमा, छोटी आई जो होती हैं उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं, एनाटॉमी जी। का भी फर्क पड़ता है, पर मोर इज फिजियोलॉजिकल। जी, तो मैम जैसे कि आपने बताया कि इन कंडीशंस का कैसे इफेक्ट पड़ता है हमारे ब्लाइंडनेस पे, और हमने देखा कि एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डिफरेंट कॉजेज ऑफ द ब्लाइंडनेस, सो वी विल बी डिस्कसिंग इट फर्दर आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। This is Aparna. She loves chess and Shah Rukh Khan. Her best friend is Swati. She also has visual impairment. This is Neeraj. धीरे धीरे चल रही He plays many instruments. सुनो जो कहानी He कह loves रही Mohammad Rafi है, and cricket. ये कहानी सदियों पुरानी है, ये कहानी हमें He also uses crutches for mobility. धीरे धीरे चंदा है तू मेरा सूरज है तू This is Raj Bala. मेरी आँखों का तारा है तू जीती हूँ मैं बस तुझे देख कर With her husband and daughter. She loves cooking and watching TV. सूरज है तू मेरी आँखों का तारा है तू She also has cerebral palsy. Look beyond the disability. Look at the person. The state of knowledge exists. The will, the capacity, and method are usually the problem. मानसिक मंदता एक ऐसी विकलांगता है जो 18 वर्ष की आयु से पूर्व कभी भी हो सकती है, जिसमें व्यवहार अनुकूलता में कमी एवं बुद्धि क्षमता 70% से कम होती है। Alone we can do so little. Together we can do so much. भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा देश भर में पंजीकृत केंद्र इस बात को प्रमाणित करते हैं। NIMH प्रादेशिक केंद्र नई दिल्ली एक ऐसा ही केंद्र है जहां छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाता है। जिसके उपरांत वे मंदबुद्धि बच्चों की सेवा में नियुक्त होते हैं। क्लासरूम टीचिंग, ग्रुप टीचिंग एवं भारतीय पुनर्वास परिषद के नव शिखर चैनल पर प्रसारित टेलीकॉन्फ्रेंसेस द्वारा संबंधित विषयों पर विस्तार पूर्वक ज्ञान दिया जाता है। मेडिकल, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी,
साइकोलॉजी और स्पेशल एजुकेशन जैसे क्षेत्रों में छात्रों को प्रशिक्षित किया जाता है। प्रयोगात्मक अनुभव एवं अभ्यास के लिए टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के उपरांत छात्रों को मंदबुद्धि बच्चों के साथ कक्षाओं में नियुक्त किया जाता है और इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान का भी आधार बनाया जाता है, जिससे वे संपूर्ण शिक्षा एवं चिकित्सा शैली को समझ सकें। इस पूरे प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थी जर्नल्स, न्यूज़लेटर्स, पेरियोडिकल्स, चार्ट्स, मॉडल्स, कंप्यूटर ट्रेनिंग एवं टेक्स्ट बुक्स का उपयोग कर सकते हैं। कहते हैं, कीप योर फेस टू द सनशाइन एंड यू कैन नॉट सी द शैडो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों को सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं में नियुक्त किया जाता है, जहां वे मंदबुद्धि बच्चों के लिए निरीक्षण, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान का दायित्व संभालते हैं और इसके पश्चात ये विद्यार्थी इस प्रशिक्षण का उपयोग मंदबुद्धि बच्चों के सामाजिक एवं शैक्षणिक उत्थान एवं विकास में करते हैं और एक लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। और फिर लक्ष्य कितना ही दूर हो, फासला नजरों का धोखा भी तो हो सकता है। वो मिले या ना मिले, हाथ बढ़ाकर देखो। ब्लाइंडनेस, ट्रैकोमा, रिवर ब्लाइंडनेस, तो इस तरीके से हमने डिफरेंट कॉजेज डिस्कस करे। तो आइए हम इन कॉजेज को और जानते हैं कि डिफरेंट और कौन से कॉजेज हो सकते हैं जो इनको ब्लाइंडनेस में कंट्रीब्यूट करते हैं। हाँ, तो अब सबसे इम्पोर्टेंट कॉज एक और भी है, विटामिन ए डेफिशिएंसी। ये मैंने आखिरी में इसलिए रखा है बिकॉज आई वांट टू टॉक अबाउट इट इन डिटेल। विटामिन ए बहुत इम्पॉर्टेंट हमारी बॉडी के लिए होता है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारी बॉडी के लिए आइज़ के लिए होता है। आइज़ में रॉड्स और कोन्स, दो तरह के सेल्स होते हैं रेटिना की लेयर्स में। रेटिना मतलब पिछला पर्दा। तो जो रॉड्स और कोन्स होते हैं, इन्हीं से हम देख पाते हैं। इन्हें हम बोलते हैं फोटो रिसेप्टर्स। इट्स लाइक कैमरा। तो कैमरे का जो बेसिक सेल मैकेनिज्म है, वैसे ही हमारी आइज़ में बेसिक मैकेनिज्म है ये रॉड्स एंड कोन्स। यही जो होते हैं सेल्स, विटामिन ए इनकी ग्रोथ पे हेल्प करता है। तो जो रॉड सेल्स हैं, विटामिन ए जिन बच्चों को नहीं मिल पाता, उन बच्चों को विटामिन ए डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। नाइट ब्लाइंडनेस इज ऑल्सो कॉल्ड निक्टैलोपिया। मतलब वो सिर्फ रात में नहीं देख पाते, जैसे जैसे शाम होती है उन्हें दिखना कम होता है। ये विटामिन ए डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है हमारी कंट्री में और इसके कारण ये है कि जो बच्चे माँ के दूध पे हैं, शुरू में पैदा होते ही नवजात शिशु, माँ भी विटामिन ए डेफिशिएंट है, तो उन्हें फिर उनके ब्रेस्ट मिल्क में भी, दूध में उन्हें नहीं मिलता है विटामिन ए, और बाहर से आहार वो लेते नहीं है, तो फर्स्ट 6 मंथ्स में भी विटामिन ए डेफिशिएंसी स्टार्ट हो जाती है। ना तो उन्हें बाहर से मिल रहा है उस समय कुछ आहार, और ना उनकी मदर्स में विटामिन ए सफिशिएंट क्वांटिटी में है जो कि ब्रेस्ट मिल्क में आ जाए। तो ये सोचना गलत है कि विटामिन ए डेफिशिएंसी बड़े बच्चों में होता है। विटामिन ए डेफिशिएंसी 0 to 6 मंथ्स में बहुत कॉमन है, जो कि मिस हो जाता है, हम नहीं देख पाते क्योंकि बच्चा नाइट में नहीं देख पा रहा, ये हम समझ ही नहीं पाएंगे। दूसरी चीज़, आफ्टर 6 मंथ्स जो हम बच्चों को वीनिंग कराते हैं, खाना, उसको हम खाना और आहार स्टार्ट जो करा रहे हैं, उसमें हमारी काफ़ी गलतियाँ रहती हैं और हमें ये पता नहीं होता कि हमें किस तरह के फूड्स खिलाने हैं जिसमें विटामिन ए, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो जब हम नहीं खिलाते हैं, अगेन द चाइल्ड इज हैविंग द सेम प्रॉब्लम इन द नाइट्स, ही इज नॉट एबल टू सी, दैट्स व्हाई द टर्म इज नाइट ब्लाइंडनेस। अब विटामिन ए डेफिशिएंसी इज अ ह्यूज प्रॉब्लम एंड दैट्स व्हाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ मेड सेवरल स्टेप्स एंड कंपल्सरी विटामिन ए दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट विथ which is incorporated in national immunization schedule। तो विटामिन ए डेफिशिएंसी जो सेट होती है, जब एक बार ये सेट हो जाता है तो इसमें स्टेजेस होती हैं। कॉर्नियल जीरोसिस, जीरोफ्थैल्मिया बोलते हैं,
स्कारिंग हो जाती है और फिर अल्टीमेटली चाइल्ड ब्लाइंड हो जाता है। अगर हम इसको प्रिवेंट करना चाहें तो बहुत सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमें न्यूट्रिशन पे ध्यान देना होगा। विटामिन ए एनरिच्ड फूड हमें खिलाना है, और दूसरा लेस देन 6 मंथ्स विटामिन ए ओरल फॉर्म आते हैं बच्चे के लिए 0 to 6 मंथ्स के लिए 50,000 इंटरनेशनल यूनिट्स उनकी डोज होती है। आप बच्चे को वो पिलाइए, और अगर वो 6 मंथ से बड़ा है, 6 मंथ्स टू 1 ईयर के गैप में अगर वो बच्चे की उम्र है तो उसको 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स देना है विटामिन ए ओरल फॉर्म, और अगर वो 1 ईयर से अबव है तो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स विटामिन ए देना है। ये फ्रीली अवेलेबल है, सारे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स में ये हम अब स्टार्ट कर चुके हैं। पहली डोज विटामिन ए की मीजल्स इम्यूनाइजेशन के साथ दिया जाता है एट 9 मंथ्स ऑफ एज। मीजल्स की जब वैक्सीन लगाई जाती है हर हॉस्पिटल में, तो अब हम विटामिन ए ड्रॉप्स भी उन्हें पिला देते हैं एट 9 मंथ्स, और फिर अगली डोज 18 मंथ्स, 24 मंथ्स, 30 मंथ्स एंड 36 मंथ्स। तो टोटल 5 डोजेज विटामिन ए की एंडेमिक एरियाज में ये दिया जा रहा है। एंडेमिक एरिया जहाँ पे विटामिन ए डेफिशिएंसी, एंडेमिक बेल्ट जो इंडिया में है, वहाँ ये देना शुरू हो चुका है। मैम यहाँ पे आपने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि हमें न्यूट्रिशन पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, एंड वी शुड प्रोवाइड विटामिन ए रिच फूड। यस। तो कौन कौन से विटामिन ए रिच फूड्स होते हैं जो हम दे सकते हैं? हाँ, विटामिन ए रिच फूड्स होते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जो बच्चे बिल्कुल नहीं खाते, तो वो पसंद भी नहीं आते। मैं आपको बताऊंगी किस तरह हम खिला सकते हैं। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और येलो फ्रूट्स, मतलब पपाया, कैरेट, ऑरेंज, येलो फ्रूट्स। सेकेंडली, इसमें बच्चे फ्रूट्स भी कम खाते हैं, तो किस तरह से इन्हें खिलाया जाए मैं अभी आपको बताऊंगी जी। और अदर थिंग्स लाइक उसको बोलते हैं, जैसे घी है घर का, बटर है, या फिर जो लोग नॉन वेजिटेरियन डाइट लेते हैं, फिश, कॉड लिवर ऑयल। कॉड लिवर ऑयल हमारे समाज में थोड़ा कम यूज़ होता है, फिश खिला सकते हैं, और बटर और घी का यूज़ करना अच्छा माना जाता है। बटर जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, इनफैक्ट उसको अवॉइड करते हैं लोग कि नहीं बच्चे को डायरिया हो जाएगा, छोटे बच्चों को बटर नहीं देना, बट बटर देना चाहिए। एंड अब ये जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, हम बोल देते हैं खिलाइए बच्चे को, एज अ मदर इवन आई नो बच्चे को खिलाना असंभव है। उसको आप हमेशा ये करिए, जैसे जिस सीजन में जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आ रही हैं, अगर पालक और ये मेथी इस तरह के विंटर सीजन में आती है, तो आप आटे में गूंद के उसको पराठे के फॉर्म में भी खिला सकते हैं। तो बच्चा पराठे में खा लेगा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, अलग से वो आलू मेथी की आप सब्जी बनाइए, बच्चा बिल्कुल नहीं खाएगा। तो उसको पराठे में, डाउ में उसको मिक्स करके यू कैन सर्व लाइक विथ चपातीज एंड पराठास। सेकेंडली, कैरेट जूस। कैरेट इज वेरी फ्रेंड, चिल्ड्रन डू ईट कैरेट, बट इनटेक बहुत कम होता है। अगर आप उसका जूस निकाल दीजिए कैरेट और एप्पल का मिक्स करके, इट इज़ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए एज वेल एज आयरन। एंड ऑल्सो पपाया। Papaya again is not very liked by children, but mango is liked and loved by children, and mango is very rich in vitamin A. मैम यहाँ पे आपने एक पॉइंट में बात करी थी एंडेमिक एरियाज, सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस एंडेमिक एरिया पॉइंट? एंडेमिक एरियाज मेरा मतलब है इंडिया में सर्वेज हो जाते हैं, वहाँ पे उन्होंने बेल्ट्स बनाई हुई है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और साउथ में भी, केरला के ईस्टर्न कोस्ट, इन सब जगहों में हमने देखा कि विटामिन ए डिफिशियंसी कॉमन है, तो इन एरियाज को बना दिया गया एंडेमिक एरियाज, और यहाँ पे विटामिन ए सप्लीमेंटेशन कंपलसरी कर दी गई है इन लोगों, इन स्टेट्स की गवर्नमेंट से। सो द एरियाज व्हिच आर मोर प्रोन टू विटामिन ए डिफिशियंसी। यस, लाइक गोइटर बेल्ट है इंडिया में, गोइटर अगेन इज ड्यू टू आयोडीन डिफिशियंसी। उनकी हिमालयन रीजन में, हमारे यहाँ ऊपर नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा कॉमन है आयोडीन डिफिशियंसी नमक में, इसलिए हमारे नमक को आयोडाइज कर दिया गया है गवर्नमेंट के थ्रू। इसी तरह विटामिन ए जो है अब वो उन एंडेमिक एरियाज में कंपलसरी दिया जाता है। विद मीजल्स वैक्सीनेशन इट स्टार्ट्स एंड देयर आर टोटल ऑफ 5 डोजेज एज आई एक्सप्लेन्ड, लेस देन 6 months 50,000, 6 months to 1 year 1 lakh, एंड मोर देन 1 year 2 lakh इंटरनेशनली। जी। अब अगर विटामिन ए डेफिशिएंसी हो गई है, मतलब उसको ज़ीरोफ्थैल्मिया डिजीज हो चुका है, जिसमें कॉर्नियल स्कारिंग होती है, बच्चे को इरिटेशन होता है, लगता है कुछ आँख में गिर गया है, उसको बोलते हैं फॉरेन बॉडी सेंसेशन, वाटरिंग हो रही है, दर्द हो रहा है आंखों में, और फिर धीरे धीरे उसकी आंख सिकुड़ना शुरू होती है, कॉर्नियल स्कारिंग, और फिर उसको रात को, शाम को कम दिखना शुरू होता है। बच्चा वो बोलते हैं सुबह तो ठीक चल रहा था, शाम को ये गिर जाता है, कॉमन कंप्लेंट।
तो अंधेरे में बच्चा गिरने लग रहा है। तो ये जो सिम्टम्स हैं ये आते हैं बच्चों के नाइट ब्लाइंडनेस में। और इसका ट्रीटमेंट जो है वो अगेन इट इज़ विटामिन ए ओरल ड्रॉप्स, और इसका फिर एज अनुसार 6 months to 1 year एंड 1 year to 2 years में डोजेज वही 50,000 इंटरनेशनल यूनिट्स, 1 लाख और 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स देते हैं। ये ट्रीटमेंट जो है ये 0 डे पे देते हैं, मतलब आज शुरू किया, एक दिन आज दवाई दी गई, नेक्स्ट डे पे दैट इज डे 1, एंड उसके बाद रिपीट द होल सेट ऑफ मेडिसिन आफ्टर 4 weeks दैट इज 1 month। ये दैट मीन्स 3 भागों में ये ट्रीटमेंट है जिसको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है गवर्नमेंट से। इसको बीच में ब्रेक नहीं करना चाहिए। एट 0 day, एट 1 day एंड एट 1 month ये ट्रीटमेंट लेना चाहिए। So these are the steps that a individual should take to avoid vitamin A deficiency. हाँ जी, तो जैसे ये ट्रीटमेंट तो ये है कि आप डिजीज आ गया उसके बाद आप दे रहे हो। कभी कभी किन्हीं बच्चों में ओरली हम दे ही नहीं सकते, क्योंकि विटामिन ए डेफिशिएंसी ज़्यादातर उन बच्चों में होता है जिसमें PEM होता है। PEM मतलब है प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन। तो मीजल्स, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन वाले बच्चे तो कुछ खाते ही नहीं है, और अगर उनको रेकरेंट डायरियाज हैं, ओरली वो नहीं ले पा रहे, तो विटामिन ए के पेरेंटल फॉर्म्स भी अवेलेबल हैं। तो इंजेक्टेबल फॉर्म्स उनको लग सकते हैं, पर ट्रीटमेंट जरूर कराना चाहिए, फिर भी बच्चा बच सकता है ब्लाइंडनेस से। मैम, इन जनरल पॉपुलेशन हमने अक्सर देखा है कि जो इंडिविजुअल्स की होती है वो कंप्लेंट्स होती हैं कि कलर्स में दे आर नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश। कलर ब्लाइंडनेस, रीजन? यस, कलर ब्लाइंडनेस इज अ सेपरेट एंटिटी। विटामिन ए से उसका संबंध नहीं है। विटामिन ए डेफिशिएंसी में एक चीज मैं आपको और बताऊंगी, फिर आपको कलर ब्लाइंडनेस के बारे में बताऊंगी। विटामिन ए डेफिशिएंसी में ये बोलते हैं बच्चों को शाम को नहीं दिख रहा, और भी कंडीशंस होती हैं जिसमें शाम को या रात को नहीं दिखता, वो जरूर आपको चेक कराना चाहिए। और उसमें एक कंडीशन होती है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। उसमें जो रेटिना है पीछे का पर्दा, उसमें कुछ डिपॉजिट हो जाता है काला काले रंग के, तो बच्चे को उसमें भी शाम को और रात को नहीं दिखता। तो निक्टेलोपिया इज अ सिम्टम फॉर बोथ एंड देयर आर अदर कंडीशंस। तो पहले आप चेक करा लीजिए, सीधा ही नहीं कि विटामिन ए का ट्रीटमेंट शुरू करा दीजिए। ये जो शाम को नहीं दिखने की शिकायत है ये 3-4 कंडीशंस में है। मैंने आपको बताया विटामिन ए डेफिशिएंसी, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा एंड देयर आर अदर कंडीशंस आल्सो जी। अब आपके क्वेश्चन पे आते हैं कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस अगेन उसमें भी 3 तरह के होते हैं। कुछ लोगों को ग्रीन नहीं दिखता, कुछ लोगों को रेड नहीं दिखता, कुछ लोगों को कोई और कलर्स नहीं दिखते। मोस्टली रेड कलर एंड ग्रीन कलर से कलर ब्लाइंड। ये कलर ब्लाइंडनेस अगेन गोज बैक टू द कोन्स। जो हमारे रेटिना में 2 तरह के सेल्स होते हैं, मैंने बताया था, रॉड्स एंड कोन्स। तो जो कोन्स है ये कलर ब्लाइंडनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर उनमें कोई तकलीफ है बचपन से ही, कंजेनाइटल कोन्स के डेवलपमेंट में कोई अबनॉर्मेलिटी है, तो उसको वो पर्टिकुलर कलर नहीं दिखेगा। इसके टेस्ट होते हैं कलर ब्लाइंड के। इनफैक्ट कुछ जैसे ड्राइवर्स की जॉब होती है जिसमें भी एट बेसिक लेवल, आर्मी, एयरफोर्स और ये सब पायलट्स के जॉब्स होते हैं, इनके पहले इनके कलर ब्लाइंड टेस्ट ज़रूर होते हैं, जिससे कि इन्हें रेड और ग्रीन कलर में भेद पता चल सके। बट उसमें वही है कि वो टेस्टिंग कर सकते हैं, उसको ट्रीट नहीं कर सकते। इफ समबडी सेज आई कैन ट्रीट योर कलर ब्लाइंडनेस, इट इज रॉन्ग। So it's not treatable. No. That's why we have not mentioned here in preventable causes of blindness. Color blindness you cannot treat. जी। तो कई लोग बोलते हैं कि हम ट्रीट कर सकते हैं और आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा, आपको ये जॉब मिल जाएगी। दैट इज रॉन्ग। तो मैम, जैसे ये हम डिफरेंट कंडीशंस के बारे में बात कर रहे हैं, आपने स्टार्टिंग में मेंशन किया था एक कंडीशन डायबिटिक रेटिनोपैथी। यस, तो हम जानना चाहेंगे उसके बारे में। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। डायबिटीज़ होती है, बहुत कॉमन है आजकल। हमारी डाइट इतनी ख़राब हो चुकी है अर्बन सेंटर्स में, अर्बन सिटी में तो ये हाल है कि एवरी 3rd person इज़ नाउ डायबिटिक। एंड डायबिटीज़ में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप डायबिटिक हैं तो आपकी आइज़ में डायबिटिक चेंजेस आएंगे, ये ज़रूरी नहीं है। आपके ब्लड शुगर्स बहुत ज़्यादा हैं और इसलिए आपकी आइज़ ख़राब हो जाएंगी, ये भी गलत है। दीज आर कॉमन थिंकिंग्स पीपल थिंक। डायबिटीज में आई खराब होगी अगर आपका ड्यूरेशन ऑफ अनकंट्रोल्ड डायबिटीज इज मोर देन 10 years. So 50% of population has eye problems due to diabetes if the duration of their diabetes is more than 10 years. 70% of population has eye problems due to diabetes if their diabetes duration is more than 20 years, and 90% of people have problems in their eyes due to diabetes if the diabetes duration of their illness is more than 20 years. तो अगर 30 years हो गया आपको
डायबिटीज है आपको, आपने कंट्रोल भी रखी है, 30 इयर्स ड्यूरेशन हो चुका है, 90% चांस है आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी होगी। और इसीलिए डायबिटिक रेटिनोपैथी का चेकअप जो कहते हैं, हर 6 मंथ्स में एवरी डायबिटिक शुड गो फॉर अ आई चेकअप। पीछे का पर्दे में प्रॉब्लम आती है जिसको हम बोलते हैं रेटिना। टॉर्च लाइट से और स्लिट लैम्प से डायबिटीज रेटिनोपैथी नहीं दिखती। तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको भी ये पता होना चाहिए कि वो क्या चेक करने वाले हैं। वो पीछे का पर्दा चेक करेंगे, ड्रॉप स्टाइल के आपकी पुतली को डायलेट करेंगे और आपके पुतली के थ्रू पीछे का पर्दा देखेंगे जी। उसमें देखना होता है कि अगर डायबिटीज है तो होता क्या है उस पीछे के पर्दे को, दैट व्हाट वी कॉल इज रेटिना। व्हाट हैपेंस, देयर आर एक्सुडेट्स एंड देयर आर फ्लेम शेप्ड हेमरेजेस, मतलब उसको कहते हैं ब्लीड कर गया है, खून के छोटे छोटे स्पॉट्स आ जाते हैं। और एक बार जब पीछे के पर्दे पे स्पॉट्स आ गए हैं और उसमें ब्लड ब्लीडिंग हो रही है, छोटे छोटे नए नए वेसल फॉर्म होते हैं, उसको बोलते हैं नियोवैस्कुलराइजेशन। एक बार वो स्टेज आ गई है तो उसको ट्रीट करा लेना चाहिए। प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस है, आप ऐसे ही छोड़ दोगे पूरा पीछे का पर्दा और फट जाएगा, वो सारे वेसल्स टूट जाएंगे और वहाँ पे आपको मैक्यूला जो विजन का एरिया है वो आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जी। तो ये जैसे कि डायबिटिक रेटिनोपैथी में हमने देखा, आपने बताया कि डायबिटीज में ऐसा नहीं है कि हमेशा ही हो, अगर डिपेंड करता है ड्यूरेशन। यस जी। ड्यूरेशन पे जी, अनदर कंडीशन दैट वी यूज इज, आई मीन द डॉक्टर्स आर यूजिंग ROP। व्हाट इज दैट कंडीशन? हाँ, मैं अभी ROP पे आती हूँ। ROP का फुल फॉर्म होता है रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी। रेटिनोपैथी इज अगेन पीछे के पर्दे की कोई प्रॉब्लम है, ऑफ प्रीमेच्योरिटी। प्रीमेच्योरिटी ये न्यूबॉर्न बेबीज में देखा जाता है, जो बेबीज पहले पैदा हो जाते हैं अपने टाइम से पैदा होने वाले बेबीज एट 37 वीक्स। बेबीज हु आर बोर्न बिफोर 37 वीक्स, मतलब 9 महीने जो नॉर्मल टाइम होता है मदर के वूम में, उससे पहले बेबीज पैदा हो गए एंड दे आर एक्सट्रीम प्रीमेच्योर और उनका वेट लेस देन यूजुअली 1.3 kg से कम हो, उन बेबीज में रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी ROP देखा जाता है। 1.3 kg से कम होना वेट, दो कंडीशंस हैं, एंड सेकेंडली ऑक्सीजन अगर उनको दिया गया है बहुत ज़्यादा, ये दो कंडीशंस प्रीडिस्पोज करती हैं रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी को। तो ऑक्सीजन इसलिए दिया जाता है जब इतने छोटे बेबीज पैदा हो रहे हैं 1.3 kg और पहले ही टाइम से पैदा हो रहे हैं तो उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है, तो ऑक्सीजन देना भी ज़रूरी है, मैंडेटरी है। तो हम इसको प्रिवेंट नहीं कर सकते कि हम उसे ऑक्सीजन ना दें, है ना। तो ऑक्सीजन तो हमें देना पड़ता है, बट यही प्रिवेंशन इसका ये हो सकता है कि सेट इन हो जाता है, 90% बेबीज में हो भी जाता है। उसको टाइमली चेकअप कराना एट 2 वीक्स, एट 4 वीक्स, एट 6 वीक्स, एट 8 वीक्स ऑफ एज, उसको आप चेक कराइए रेटिना स्पेशलिस्ट से। और उसका अगर आ गया है अनफॉर्चुनेटली बेबी को, वो वही सेम चीज़ पीछे के पर्दे पे वो वेसल्स और वो ब्लड के क्लॉट्स और वो सब आ चुके हैं जिसको रेटिनोपैथी बोलते हैं, तो उसका ट्रीटमेंट है लेज़र। डायबिटिक रेटिनोपैथी, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी एंड रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, इन सब का ट्रीटमेंट है हमारी कंट्री में है, बहुत सारे सेंटर्स में है, अफोर्डेबल कॉस्ट पर है, फ्री भी है गवर्नमेंट में। लेज़र से इसको जला दिया जाता है उन एरियाज को, इसको बोलते हैं पैन रेटिनल फोटोकोआगुलेशन, जी, PRP। एंड लेजर्स होते हैं उसमें, वो उसी पॉइंट पे जहाँ आपके वो वेसल्स हो गए हैं उनको जला देते हैं, उस पर टारगेट करके, बाकी एरिया पे कोई तकलीफ नहीं आती, आईज बिल्कुल ठीक रहती है, कोई तकलीफ उसमें नहीं होती, और इसकी कॉस्ट भी ऐसे कुछ ज़्यादा नहीं होती, डिपेंड्स, एक एक सिटिंग में ही हो जाए तो अच्छा है। तो 2000 to 3000 प्राइवेट गुड हॉस्पिटल्स विल डू दिस प्रोसीजर। एंड सेम थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, जी, जो कि BP के कारण होता है। तो हाइपरटेंसिव अगेन इज ड्यू टू ब्लड प्रेशर। अब वही चीज़ है, ब्लड प्रेशर आज मेरा 200/110 है तो मुझे आज नहीं होगा, इट इज़ अगेन द ड्यूरेशन। एंड डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन दोनों है तो वो और बुरा है हमारी आंखों के लिए, पीछे के पर्दे पे ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है। तो हाइपरटेंशन में भी 160 से ऊपर अगर आपका BP है ऊपर सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक 110 से ऊपर है, कंटिन्यूसली हाई ही जा रहा है for so many years, you have a chance, you have a retinopathy setting in. The prevention for this diabetic retinopathy, hypertensive retinopathy is, ठीक है, पहले आपको डायबिटीज हो ही ना और हाइपरटेंशन ना हुए, लेकिन वो तो कॉमनली हो रहे हैं। अब एक बार हो गया है तो यू शुड ट्राई टू गेट योर आईज चेक्ड इन टाइम। तो अगर आपका 10 years डायबिटिक हो आप, और आपने
4 साल से आईज चेक नहीं कराई है तो यू आर एट रिस्क नाउ. एवरी 6 months फॉर अ डायबिटिक एंड अ हाइपरटेंसिव गेट योर फंडस चेक्ड. फंडस वर्ड बोलते हैं हम, रेटिना या फंडस बोला जाता है. एंड नॉट चेक्ड बाय अ टॉर्च लाइट इन कैंप्स. यू शुड गेट इट चेक्ड इन अ सेंटर, इन अ आई सेंटर, जहाँ पे पुतली डाल के डायलेट किया जाए और पीछे का पर्दा देखा जाए. जी मैम, इट्स वेरी मच नोन दैट आई इज एन इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन Yes. देखने के लिए फॉर विजन. तो इसमें कुछ जैसे रेडियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं लाइक एक्स रेज या अल्ट्रावायलेट रेज या मोबाइल की रेज, तो इससे हमारी आई की कंडीशन पे कोई इफेक्ट पड़ता है? नहीं, एज सच मोबाइल्स को बहुत वो करा गया कि आईज खराब होती हैं, फिर कहा उन्होंने कान खराब होते हैं, फिर कहा उन्होंने हार्ट पे भी असर पड़ता है. ऐसा जी. कुछ प्रूव नहीं हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं है. हाँ, सनलाइट से ही हार्म हो जाता है हमारी आंखों को. अब आप कहना चाहो तो वी शुड वेयर ग्लासेस, गॉगल्स पहनने चाहिए. सनलाइट से ही आंखों के रेटिना, वही बात आती है, रेटिना पे कोई भी तेज लाइट पड़े, कोई भी रेस पड़े, खराब तो होता ही है. बट मोबाइल से एज सच अब तक ऐसा कुछ ठोस नहीं निकला है. इट्स जस्ट इन द एयर दैट दीज थिंग्स आर हैपनिंग. वी शुड इनफैक्ट प्रोटेक्ट आवर आईज फ्रॉम द डायरेक्ट सनलाइट. जो कहते हैं ना एक्लिप्स से आईज जी, खराब जी, हो गई. जी, जी. एक्लिप्स से और डायरेक्ट सनलाइट से सेम इंटेंसिटी से रेज आती हैं. हमें एक्लिप्स में सावधान रहना है और बाकी दिनों में सावधान नहीं रहना, ये गलत है. जी मैम, यू हैव टोल्ड द प्रिवेंटिव स्टेप्स फॉर विटामिन ए डेफिशिएंसी एंड द ग्लूकोमा, और हमने एक स्टार्टिंग में कंडीशन की बात की थी ट्रैकोमा के बारे में. Yes. सो वी वुड लाइक टू नो व्हाट आर द प्रिवेंटिव स्टेप्स फॉर ट्रैकोमा. मैं बताती हूँ. ट्रैकोमा बहुत ही डेडली डिजीज है. एक तो उसके साइंस इतने सटल होते हैं कि पेशेंट को ही नहीं समझ में आते. बचपन में फ्लाई ने काट दिया और उसको समझ नहीं आते. स्किन और आइज दोनों पे होते हैं. इचिंग होती है, बड़ी खुजली होती है और वाटरिंग होती है, और वो समझ ही नहीं पाते क्या हुआ. लेकिन कुछ केसेस में ट्रैकोमा पे सुपरफिशियल बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाता है. मतलब पहले तो फ्लाई ने काट लिया, ट्रैकोमा से इन्फेक्शन हो गया, और फिर उसके बाद बैक्टीरिया एक और कोई आकर सेट इन करके कंजंक्टिवाइटिस जैसा पिक्चर उन्होंने दे दिया. अब जो है बहुत डिस्चार्ज होने लगता है आंखों से, और ये डिस्चार्ज जो है पुअर हाइजीनिक कंडीशंस में हो रहा है. साफ सफाई नहीं रखी, वहीं ये फ्लाई है, वहीं पे डिजीज हो रहा है. तो साधारण सी बात है, कोई सेपरेट हैंकी या सेपरेट टॉवल ऐसा कोई यूज नहीं हो रहा वहाँ. तो फिर क्या होता है, जब ये डिस्चार्ज आंखों से आ रहा है, हमारे हाथों पे लगता है, हम दूसरे लोगों को छूते हैं, या हमने जिस चीज से साफ किया उस चीज से उस आदमी ने भी अपना फेस साफ किया, इस तरह इन्फेक्शन स्प्रेड होता है. तो बड़ी आसानी से प्रिवेंटेबल है. अगर किसी को पता चल जाए उसको ये प्रॉपरली ये बीमारी है, तो उसका अलग आप कपड़ा रखिए, अलग हैंकरचीफ रखिए, अलग टॉवल रखिए, सफाई रखिए. तो वो जो डिस्चार्ज कहीं गिर भी रहा है आसपास, अगर रोज सफाई हो रही है आपके रूम में, तो ये प्रिवेंट हो जाएगा कि वो दूसरे को फैल पाए. दूसरा, ये विलेज सेटअप में ज़्यादा देखा जाता है डिजीज. तो विलेज सेटअप में सूरमा रॉड्स लगाते हैं कॉमनली. मतलब आप सूरमा बोलते हैं काजल को, तो वो एक ही डिब्बी से काजल लगाया जाता है सबको घर में. तो अब जिसको इन्फेक्शन है उसको लगाया गया, और उस सूरमा रॉड पे वो इन्फेक्शन का डिस्चार्ज जो है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन का और ट्रैकोमा दोनों का मिक्स होकर डिस्चार्ज उस पर चिपक जाता है रॉड पे. वो दूसरे पेशेंट, दूसरे घर में जो रहने वाले हैं साथी, उनको लग गया. तो वो ऐसे फैल के पूरी कम्युनिटी में ट्रैकोमा फैल जाता है, कॉमनली इन द ग्रुप्स वेयर दे आर यूजिंग कॉमन सूरमा रॉड्स. जी. तो प्रिवेंट करने का ये स्टेप है कि अपनी पर्सनल हाइजीन, एक बार इन्फेक्शन हो गया जिस पेशेंट को, उसको आइसोलेट कर दीजिए उसकी चीज़ों को. एंड सेकेंडली, उस फ्लाई को इरेडिकेट करने के लिए, फ्लाई इज द वेक्टर. वेक्टर मतलब जो डिजीज ट्रांसमिट करता है. जी. आप उस फ्लाई को इरेडिकेट कर दीजिए. कैसे करेंगे आप? वो जो भी वहाँ जगह है वहाँ पे वो आप छिड़वा सकते हैं, स्प्रे छिड़कवा सकते हैं, एंड फ्लाई को इरेडिकेट कर देंगे तो वो ट्रांसमिट अगेन नहीं हो पाएगा. जी. मैम, वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ आई. Yes. तो एक कॉमन सा क्वेश्चन है जो सभी नोटिस करते हैं, दैट इज द कलर ऑफ द आई. सो वन इंडिविजुअल हैज डिफरेंट कलर्स, somebody has different colors. Yes. So now that can also be changed. You can wear contact lens and whatever color you want, you can change your eye color. But आप क्या पूछना चाह रहे हो इसमें कि रीजन क्या होता है? जी, इसका रीजन क्या होता है और इससे इफेक्ट पड़ता है, कुछ चेंजेस होते हैं? नहीं, इससे कोई चेंज नहीं होता. ये कलर है आइरिस का, ये जेनेटिक है, हेरिडिटरी है. देयर इज अ जीन फॉर दिस. जी. कोई ऐसी बात नहीं है. आपके पेरेंट्स के किसी की एक की अगर आईज इस कलर की है, या आपकी फैमिली में किसी की है, इट कैन कम टू यू. और किसी भी कलर हो, ब्राउन हो, आइरिस का कलर होता है, आइज का नहीं होता है. जी. काली पुतली है, उसके अंदर प्यूपिल है, एक खिड़की है, विंडो, और प्यूपिल के अंदर रेशे हैं. वो रेशे अलग अलग कलर के होते हैं, आइरिस.
तो आइरिस अगर ब्राउन कलर का है या ग्रे कलर का है या वाइट कलर का है, अलग अलग कलर्स के होते हैं, उसका कोई संबंध विजन से नहीं होता। जी, कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, जिनकी आंखें भूरी कलर की होती है उनके बारे में कुछ कहते हैं लोग कि वो अलग नेचर के हैं, वो भी सब गलत है। दैट इज द नेचर और आइरिस के कलर से हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब तो आप यू कैन वेयर डिफरेंट कलर कॉन्टैक्ट लेंसेज एंड गेट व्हाटएवर कलर यू वांट। जी। तो मैम, लाइक वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डिफरेंट कंडीशंस, Yes. वी हैव डिस्कस्ड, अभी तक हमने देखा कि कैटरैक्ट है, ट्रैकोमा है, डायबिटिक रेटिनोपैथी है, और डिफरेंट कंडीशंस के हमने बारे में डिस्कस किया। और आपने एक लीडिंग कॉज बताया कैटरैक्ट। हाँ, मैं कैटरैक्ट के बारे जी। में आपको बताने ही चाह रही थी। हाँ, पूछिए। जी, हम पूछना चाहेंगे कि आपने एक उसमें एक ऑप्शन बताया था कि सर्जरी हम करवा सकते हैं, तो हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानना चाहेंगे कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द सर्जरी एंड द प्रोसीजर। यस, वेरी नाइस क्वेश्चन। कैटरैक्ट की ट्रीटमेंट सर्जरी ही है। पहली चीज तो ये, जो लोग ये कह रहे हैं कि दवाइयों से कैटरैक्ट रुक रहा है, दैट इज रॉन्ग। देयर इज नो साइंटिफिक रिसर्च and there is never ever being any case being reported that cataract has stopped due to a particular medicine or a particular exercise. जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, दे आर वेरी डिसहार्टेंड अगर उनको पहले ये किसी ने बोल दिया है कि दवाइयाँ दी थी और कैटरैक्ट तो हमारा कम हो गया था, अब फिर से बढ़ने लगा है, या फिर एक्सरसाइजेस करने से कैटरैक्ट कम हो रहा है। ये सब गलत है। दीज आर ऑल मिथ्स। सो वी शुड डिस्करेज सच मिथ्स, क्योंकि वो आदमी फिर परेशान हो जाता है कि अच्छा मैं तो सर्जरी से बच सकता हूँ। कैटरैक्ट मीन्स सर्जरी। अब कैटरैक्ट कितना है ये डिपेंड करता है। आप वेट कर सकते हो, 6 महीने बाद सर्जरी करा सकते हो, 1 साल बाद करा सकते हो। शुरू में एकदम कराने की जरूरत नहीं है। जी। अगर आपका विजन 6/6 है, आपको बिल्कुल बढ़िया दिख रहा है और आपकी आंख में कैटरैक्ट है, ये भी हो सकता है शुरू में, तो आप कुछ मत करिए, आप घर जाइए, 6 महीने बाद आकर फिर से चेक करा लीजिए। हो सकता है तब आपका विजन 6/18 हो, मतलब तो भी आप चश्मा पहन के काम चला लीजिए अगर आप सर्जरी पोस्टपोन करा रहे हैं। लेकिन सर्जरी तो करानी ही पड़ेगी एंड में, क्योंकि लेंस जो है वो ओपेक हो रहा है। जी। लेंस में डिजेनरेटिव चेंजेस आ रहे हैं एज से या कोई और कारणों सर्जरी इज से। द ओनली ऑप्शन। सर्जरी इज द ओनली ट्रीटमेंट। वी शुड नो दिस फैक्ट कि अगर हम कैटरैक्ट को बचाना चाह रहे हैं खाने में कुछ चेंजेस लाने से या दवाइयों से, तो वो हम गलत कर रहे हैं। जी। और उस स्टेज पर जाना जब ये सब करके हम हार गए, हो सकता है तब कैटरैक्ट बहुत बढ़ गया हो, तब कैटरैक्ट ऑपरेट होना रिस्की है। तो वो फिर कैटरैक्ट मतलब वो सफ़ेद हो जाता है लेंस, वो फट के पूरी आंख में फैल सकता है और फिर विजन नहीं आएगा। तो इतना भी देर नहीं करें कि कैटरैक्ट ऑपरेट भी ना हो सके, जो कि सिंपल ऑपरेबल था। और इतना भी जल्दी भी आप घबराइए मत। किसी ने आपको बोला कैटरैक्ट है, सर्जरी करानी है, टेक योर टाइम, टेक अनदर वीक, देख लीजिए कितना है, पक गया है या कच्चा है जैसे बोलते हैं, लेकिन पूरा पकने का वेट आजकल नहीं करते। सो एवरी फैक्टर वी शुड कंसीडर यस। बिफोर और आफ्टर टेकिंग सर्जरी ऑफ द कैटरैक्ट। ये हमने डिस्कस किया अपने एक्सपर्ट के साथ। बाकी की डिस्कशन इसके बारे में, बाकी की इन्फॉर्मेशन हम एक छोटे से ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे। The chief handicap of the blindness is not blindness, but the attitude of seeing people towards them. आइए जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि बधिरांधता यानी डेफ ब्लाइंडनेस क्या है। बधिरांधता एक स्थिति है जिसमें दृष्टिहीनता एवं सुनने की शक्ति में कमी आती है तथा जिससे विचारों के आदान प्रदान और रोजमर्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति में समस्या उत्पन्न होती है। बलराम एक 9 साल का बधिरांत बच्चा है। वो एक प्री मैच्योर बच्चा है जिसका शारीरिक विकास उसकी आयु के अनुरूप नहीं हुआ था। वो एक निम्न वर्गीय श्रेणी से संबंध रखता है तथा 5 साल से लगातार नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड दिल्ली के प्रशिक्षण कार्यक्रम से संलग्न है। इन 5 सालों के अंतर्गत उसे रोजमर्रा के कामों में, हलन चलन में,
उसकी शैक्षणिक जरूरतों के अनुसार संप्रेषण द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है, जिससे वो इन सब क्रियाओं में स्वावलंबी बन सके। बलराम बिना किसी सहायता के चाकू से फलों को काट सकता है। उनके छिलकों को कूड़ेदान में डाल सकता है। अपने बर्तनों को खुद साफ कर सकता है। उन्हें सही जगह पर रख सकता है। सही बर्तनों का चयन करके खुद खाना खाता है। एवं पानी की बोतल निकालकर पानी भी पीता है। इन सभी क्रियाओं में वो टेक्चुअल साइन लैंग्वेज से निर्देशों को ग्रहण करता है और अपने भावों को व्यक्त करता है। टेलर फ्रेम और ब्रेलर द्वारा गणित, पठन लेखन में भी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है। सभी बच्चों की तरह उसका भी एक मनपसंद खेल है। उसे सेल फोन को अपने कानों पर लगाकर उसका कंपन महसूस करना अच्छा लगता है। कहा जाता है, वॉकिंग विद अ फ्रेंड इन डार्क इज बेटर देन वॉकिंग अलोन इन लाइट। कहने का तात्पर्य है कि वो लॉन्ग केन ट्रेवल, टैक्टाइल पाथ, ट्रेलिंग और लैंडमार्क्स द्वारा हलन चलन में भी सक्षम है और व्यायाम संबंधी क्रियाएं जैसे ट्रेडमिल, स्टैटिक साइकिल का स्वचालन भी कर सकता है। कहा गया है, द बेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स इन द वर्ल्ड कैन नॉट बी सीन और इवन टच्ड, दे मस्ट बी फेल्ट विद द हार्ट। वेलकम बैक टू आवर डिस्कशन। वी वर टॉकिंग अबाउट द कैटरैक्ट और उसमें हमने बात की थी कैटरैक्ट सर्जरी की। सो हम इसके बारे में और जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से। मैम, जैसे हमने देखा कि सर्जरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और उसमें हमें ध्यान रखना है कि ना तो हमें बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करनी है और ना इतना डिले करना है कि वो कंडीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। इसकी कॉस्ट क्या होगी सर्जरी की? हाँ, ये कैटरैक्ट की जो कॉस्ट है, ये या तो आप मतलब ऐसा नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी होती है आज गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सब में, लेकिन अगर आप प्राइवेट में पता करेंगे तो इट डिपेंड्स ऑन दी कॉस्ट ऑफ द लेंस। तो हमारी बॉडी से लेंस निकाल के वो न्यू लेंस डाल रहे हैं। आपको किस क्वालिटी की लेंस डालनी है? इट स्टार्ट्स इवन फ्रॉम 100 रुपीज़ टू 20 to 30,000। तो जो आपका बजट है उस हिसाब से लेंस डलवाइए। 5 से 10 हज़ार रुपये की भी अच्छी लेंसेज आती हैं और 1 लाख तक की भी लेंस आती है। तो ये आपके बजट के हिसाब से आपको वो लेंस किस कॉस्ट की डलवानी है, बेसिकली उस पर निर्भर करता है। 25 to 30,000 में अच्छी लेंस डाल के कैटरैक्ट सर्जरी 1 आई की आराम से किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में हो जाती है। नॉर्मल लेंस डाली जाती है। जी मैम, ये हमने बात करी थी कैटरैक्ट के बारे में, जो कि एक लीडिंग कॉज है ब्लाइंडनेस का, और उसमें हमने देखा कि किस तरीके से हम सर्जरी के द्वारा उसको प्रिवेंट कर सकते हैं और उसकी कॉस्ट क्या होती है। ये इट टोटली डिपेंड्स ऑन द वेराइटीज दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द स्पेशलिस्ट। इसमें मैम हम एक कॉमन चीज़ देखते हैं कि
इंडिया में डिफरेंट एनवायरनमेंट है, डिफरेंट कंडीशंस है, एवरीथिंग इज डिफरेंट, एंड किसी और कंट्री में और कंडीशंस डिफरेंट है, तो व्हाट इज द व्यू पॉइंट इन दैट? हाँ, ये अलग अलग कॉजेज हैं. प्रिवेंशन और एंड ट्रीटमेंट ऑफ ब्लाइंडनेस इटसेल्फ इन इंडिया और डेवलपिंग कंट्रीज इज डिफरेंट फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज. मतलब जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, यूएस है जैसे, वहाँ पे जो लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस है वो अलग होते हैं, और हमारी कंट्री में जो है वो मोर इम्पोर्टेंटली इट इज़ लाइक विटामिन ए डेफिशिएंसी, क्योंकि हमारे यहाँ न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है जी. मैल न्यूट्रिशन, प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन बहुत कॉमन है बच्चों में, तो विटामिन ए डेफिशिएंसी जो है वो भी बहुत कॉमन हो जाती है हमारी कंट्रीज में. और हमारे यहाँ कैटरैक्ट्स भी बड़े, इट्स अ वेरी सैड थिंग दैट इट इज़ लेफ्ट अनडायग्नोस्ड एंड अनट्रीटेड, एंड सर्जरी नहीं कराते लोग, एंड वो कैटरैक्ट भी यहाँ पे ज़्यादा कॉमन कॉज हो जाता है. अगेन पुअर हाइजीनिक कंडीशंस की वजह से हमारे यहाँ ये बहुत कॉमन है, ट्रेकोमा एंड रिवर ब्लाइंडनेस जो है, ऑन्कोसर्कियासिस. वैसे रिवर ब्लाइंडनेस मेक्सिको में भी बहुत कॉमनली माना जाता है क्योंकि वहाँ वो फ्लाई ब्रीड करती है, लेकिन जहाँ पे भी ओवर क्राउडिंग है, सफाई नहीं है, वहाँ पे ब्रीडिंग ऑफ दैट फ्लाई इज मोर कॉमन. सो अगेन these problems are more common in our country. In developed countries, cataract remains a leading cause of blindness, but it is treatable at a early cost. वहाँ उनके हेल्थ इंश्योरेंस के और वो सब पॉलिसीज अलग होती हैं, तो दे गेट ट्रीटमेंट डन फास्ट. एंड प्लस वहाँ विटामिन ए डेफिशिएंसी विल नॉट बी सीन मच बिकॉज देर इज मोर ऑफ ओबेसिटी रादर देन प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन. सो रिच एंड पुअर कंट्रीज में दिस इज अ डेफिनेटली देर इज अ डिफरेंस इन द कॉजेज ऑफ द ब्लाइंडनेस. जी मैम, अक्सर हमने देखा है कि अगर हम जैसे धूप में होते हैं या बाहर सनलाइट में होते हैं एंड वी शिफ्ट आवरसेल्फ टू द डार्क एरिया, तो वी आर नॉट एबल टू एडजस्ट आवरसेल्फ फॉर फ्यू सेकेंड्स. सो व्हाट इज द मैकेनिज्म? यस, दैट इज अडेप्टेशन, डार्क अडेप्टेशन. आप धूप से डार्क कमरे में आए तो 1 मिनट को आपको ऐसा लगता है कि अंधेरा छा गया जी. सो वो आपकी जो मसल्स हैं, सिलरी मसल्स, वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं. सिलरी मसल्स ऐसे होती हैं, बीच में आई बॉल है, तो सिलरी मसल्स जो हैं वो अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं तो वो उसको आई बॉल को पीछे की तरफ करती है, तो हमें अच्छे से दिखता है अंधेरे में. जब हम बाहर से अंदर आते हैं तो सिलरी मसल्स को थोड़ा टाइम लगता है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में जी, और इसीलिए उसको बोलते हैं अडेप्टेशन. तो वो इट टेक्स एटलीस्ट 2 to 3 seconds, and in some people it takes more than 10 to 15 seconds also, but it is a normal physiological phenomena. कोई इसकी दवाई या ट्रीटमेंट की इसकी जरूरत नहीं जी. होती. So we need some few seconds to adjust ourselves in that particular. Yes, it is not a disease. जो जी. हाँ. Ma'am, earlier in your slide you have mentioned a point, Vision 2020. Yes. So we would like to know in Yes. detail what is that? Yes, Vision 2020 एक प्रोग्राम है WHO के साथ. इन्होंने WHO had actually started in 1997. And it is a program all over the world. Globally, it is actually to eradicate these preventable causes of blindness. Vision 2020 has got lot of factors, and one of these are, which I have told you, vitamin A incorporation in the national immunization schedule. Then again, finding the prevention means finding the cases of cataract and treating free surgeries. There are a lot of organizations all over the world who are doing free cataract surgeries for patients in free eye camps. The third thing which Vision 2020 is doing is also this prevention of trachoma and these infectious diseases by giving awareness. They are holding camps, eye camps, and they are telling about hygienic conditions and prevention of these flies. And like I told you, there is a pharmaceutical company which is giving free drug, this ivermectin, once a year to prevent onchocerciasis. So these are few things which are Vision 2020 does. So Vision 2020 is a global program to prevent blindness. So we say that the aim is that by 2020, year 2020, we will eradicate the preventable causes of blindness. So let's see how much we can do about it. जी. Ma'am, what are the other improvements are taking place there in India to Yes. prevent blindness? Yes, we ourselves in India, we have national program for prevention and control of blindness, and we are doing lot of good work in India. Like we are holding free eye camps. I told you there are ambulatory vans in which patients are screened for cataract. They are taken in the vans and they are operated, given free food and free stay in the hospitals, and then they are again given
transport service and sent back to their houses. Again, there is a follow-up checkup after 2 days for the operated patients. Their doctors are going to these villages and doing the follow-up checkup. They have been given free medicines, free glasses, and again after 1 month they are taken again for a second follow-up checkup for the post-surgery to these centers. This is regarding cataract. Regarding vitamin A, I told you they are giving free vitamin A drops. आपको सेंटर पे जाना है, और आपको अगर लगता है, अगर आपको नहीं भी लगता, आपको लगता है कि मेरा बच्चा जो है वो ये चीज़ें नहीं खा पा रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि बटर नहीं खा पा रहा है, या फिर वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स नहीं खाता है, कैरेट नहीं खाता है, आप सिर्फ एंशियस हो रहे हो कि इसकी डाइट ठीक नहीं है और मैं इसे दिलाना चाहती हूँ विटामिन ए, आप जा सकते हैं सेंटर पे और हेल्थ सेंटर्स पे जा सकते हैं, और आप उनको बोलिए मेरे बच्चे जो भी उम्र है उसके हिसाब से आपको विटामिन ए ड्रॉप वो आप दिलवा सकते हैं. ये भी प्रोग्राम में फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है. थर्ड थिंग इज़, अब ट्रेकोमा को तो बहुत मेजर लार्ज स्केल पे प्रिवेंट किया जा रहा है, क्योंकि जो भी ये जो फ्लाइज हैं इनको इरेडिकेट करने के लिए अब एवरी 6 मंथ्स एक बारी उन विलेजेस में स्प्रे किया जाता है पेस्टिसाइड्स, एंड ट्रीटमेंट के लिए अजिथ्रोमाइसिन फ्री ऑफ कॉस्ट उनको दी जाती है, और आई ऑइंटमेंट, टेट्रासाइक्लिन एंड इराइथ्रोमाइसिन 4 टाइम्स अ डे अप्लाई करने के लिए उन्हें फ्री हेल्थ सेंटर्स में दिया जाता है. डायबिटिक एंड hypertensive retinopathy, Government of India, they are doing free eye screening again, but here the patients are being taken to the hospital, they are doing this free checkup, checking the fundus and retina, and if found they are doing free of cost pan-retinal photocoagulation, that is lasers. So we are doing lot of work, but still lot has to be done because of many factors. We are still missing out on congenital glaucoma, congenital cataracts, and we are missing out on these cases. What different steps one should take, or rather we can say a specialist or a government or any organization should take to make the people aware about these facts? Yes, the steps, first of all, when a newborn, I'll start with the newborn baby. Newborn baby is born. In fact, in abroad, other countries, there is a universal eye screening, which we don't have it. So we can, this is a suggestion, we can also incorporate, at least in private hospitals, every newborn baby's eyes should be screened. The red reflex should be checked. रेड रिफ्लेक्स बोलते हैं उसको, मतलब आप बस सिंपल टॉर्च लाइट से आप देखो, या ऑफ्थैल्मोस्कोप होता है, हर न्यूबॉर्न बेबी को आप ज़रूर एक बारी उनकी दोनों आईज चेक करनी चाहिए. जब ये एक पीडियाट्रिशियन का काम है, मोर देन ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, जो कि डिलीवरी पे मौजूद होते हैं, और उस समय दोनों आईज को रेड रिफ्लेक्स जिसे कहते हैं, मतलब रेड लाइट हम फेंकते हैं रेटिना पे, वो वापस अगर हमारे पास आ रही है तो इसका मतलब रेटिना बिल्कुल क्लियर है. और अगर वो रेड रिफ्लेक्स नहीं दिख रहा, मतलब रेड लाइट हमने फेंकी टॉर्च से और वो वापस नहीं आ रही रेटिना से, इसका मतलब बीच में कोई ओपेसिटी है, कोई दीवार है, मतलब कोई कैटरैक्ट है, तो वहाँ तो हम कंजेनिटल कैटरैक्ट पकड़ लेते हैं. जी. दूसरी चीज़ ये है कि अगेन मैंने बताया था आपको, कंजेनिटल ग्लॉकोमा, बच्चों की आंख से पानी आ रहा है, कुछ नहीं कर रहे हैं हम, और उनको बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, ये गलत है. आप टाइम पर आई सर्जन्स को रेफ़र कर दीजिए. आई स्पेशलिस्ट जो है वो उसको एक बार अपने हिसाब से चेक करेगा, अपने इंस्ट्रूमेंट से चेक करेगा. कंजेनिटल ग्लॉकोमा कैन बी ट्रीटेड, तो वो वहाँ पकड़ सकते हैं. ये स्टेप्स लेने चाहिए. पेरेंट्स को भी, फॉर अ आई प्रॉब्लम गो टू अ आई स्पेशलिस्ट. For a newborn baby problem, you are going to a pediatrician. Likewise, for a eye problem, please, if it is a problem persistent, don't go to a simple doctor. Go to a eye specialist, and with sophisticated machines, get your eyes tested. जी. अब डायबिटिक और हाइपरटेंसिव जो पेशेंट्स हैं, उन्हें भी यही एडवाइस देते हैं. स्टेप्स उनको ये लेने चाहिए कि हर 6 मंथ्स में वो अपना आई चेकअप कराएं. डायबिटीज़ में 3 स्टेजेस होती है रेटिनोपैथी की, जैसे मैंने आपको बताया, प्रोलिफरेटिव या नॉन प्रोलिफरेटिव. प्रोलिफरेटिव मतलब खूब सारे वहाँ नए ब्लड वेसल्स फैल चुके हैं, और नॉन प्रोलिफरेटिव अभी स्टार्ट ही हुआ है. जी. तो अगर आप नॉन प्रोलिफरेटिव स्टेज में हो तो आप 6 महीने में एक बार जाओ तो बहुत है. 6 मंथ्स में आई स्पेशलिस्ट के जाइए, पुतली डायलेट करवाइए, पीछे का पर्दा चेक कराइए, बढ़ रहा है कि घट रहा है. अगर बढ़ रहा है तो वहीं लेज़र से रुक सकता है, अगर घट रहा है तो नथिंग टू वरी. अगर प्रोलिफरेटिव है, मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ वेसल्स बन गए हैं और फैल गया है, तब आपको एवरी 3 मंथ्स एक ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, जैसे आई स्पेशलिस्ट को ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं, किसी भी आप आई स्पेशलिस्ट के पास जाइए, और वहाँ पे जहाँ सोफिस्टिकेटेड ये मशीन्स हैं, अपना पीछे का पर्दा चेक कराइए, क्योंकि अब आपका प्रोलिफरेटिव हो चुका है, मतलब बढ़ चुका है, तो उसको आपको वहीं के वहीं स्टॉप करना है. नहीं तो ये वेसल्स बढ़ते चले जाते हैं और पूरा रेटिना पर्दा जो है वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं. तो आप उसको बर्न करिए लेज़र से, तभी के तभी
यूजुअली 1 या 2 बर्न्स में हो जाता है. जी. अगर 1-2 बर्न्स में नहीं हो रहा, कभी कभी 3-4 सिटिंग लगती है, बट इट कैन बी कम्प्लीटली क्योर्ड. जी. अगेन इन ग्लॉकोमा में क्या स्टेप्स ले सकते हैं आप? अपना प्रेशर कंट्रोल रखना है आईज का. वो कैसे रखना है? मेडिसिन होती हैं ड्रॉप्स, जो कि बीटा ब्लॉकर्स, जो कि आईज के वो फ्लूइड को बनने से भी रोकते हैं, और उसका क्वांटिटी जब कम हो जाएगा तो वो प्रेशर कम लगाएगा ऑप्टिक नर्व पर. दूसरा मैंने आपको समझाया था, अगर आपका नहीं हो पा रहा है प्रेशर कंट्रोल मेडिसिन से, तो आप टाइम पे जाइए. टाइम पे वो लेज़र से भी हो जाएगा. लेज़र से वो आइरिस को काट देते हैं, और आइरिडोटमी, टमी मतलब हमेशा होता है काटना, तो आइरिडोटमी करा देते हैं, और तब फ्लूइड निकल के ग्लॉकोमा का प्रभाव ऑप्टिक नर्व पे नहीं पड़ेगा, बच सकती है ऑप्टिक नर्व. फिर भी आप नहीं गए, थर्ड स्टेज आती है कि आपका प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ट्रीटमेंट नहीं हो पाया है, तो मैंने आपको बताया था ट्रेबेकुलेक्टमी, ट्रेबेकुला जो है उसको काट देते हैं. वो सर्जरी होती है, ये 3 से 4 घंटे की होती है, कोई ऐसी मेजर बात नहीं होती, और इसमें भी वो पानी का रास्ता बन जाता है. एटलीस्ट जो पानी सर्कुलेशन बेटर होएगा तो ऑप्टिक नर्व पे इस एक्स्ट्रा फ्लूइड का प्रेशर नहीं पड़ेगा, और ऑप्टिक नर्व विल बी सेव्ड, एंड हेंस ग्लॉकोमा इज ऑल्सो प्रिवेंटेबल. जी. So these are the steps taken. जी. Ma'am, like till now we are much in discussion of the children and the adults. Yes. We would like to know few points on the decreasing vision in the old age. हाँ, कुछ एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजेनरेशन बोलते हैं उसको. एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजेनरेशन इन ओल्ड पीपल. मैक्यूला एक हमारे पीछे के पर्दे में पॉइंट है जो विजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वहीं से विजन आता है, मैक्यूला. अब एज के हिसाब से भी वो मैक्यूला डिजेनरेट होने लगता है. तो अगर ये हो रहा है ओल्ड एज में, जिसे कहते हैं विजन कम हो गई है, तो देन नथिंग कैन बी डन. उसमें आपको सिर्फ दे कैन डू सम लेजर्स एंड दे कैन गिव यू सम ग्लासेस, एंड दिस इज वन थिंग विच इज कॉल्ड एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजेनरेशन. एक और चीज होती है, जब हम 35-40 ईयर्स के बाद पेशेंट्स आते हैं, उन्हें पास का नहीं दिखता, दैट इज डिफरेंट. उसको इससे मत कंफ्यूज करिए. उसका 100% उसके सिर्फ ग्लासेस लगाने हैं, ट्रीटमेंट है, कुछ नहीं है. प्रेस बायोपिया बोलते हैं उसको. जी. तो उन्हें पास का नहीं दिखता, वो सिर्फ मसल्स की वीकनेस के कारण होता है, और उसके लिए आप नियर ग्लासेस लगा लीजिए एंड इट इज कम्प्लीटली क्योरेबल. तो उसमें ऐसे कोई घबराने की बात नहीं है. बट ओवरऑल ये है कि चिल्ड्रन अडल्ट का मैंने आपको समझाया, अलग अलग कंडीशंस हैं. हमें टाइम पे अगर हम समझ लें और ट्रीट कर लें तो हम उसको ठीक कर सकते हैं. एक चीज़ और होती है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन. ये मैं आपको बताना चाहूँगी. फीमेल्स में वैसे ही ब्लाइंडनेस कॉमन है, मोर प्रीडिस्पोजिशन फीमेल्स का ज़्यादा है. और अगर प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन जो है PIH, मतलब प्रेगनेंसी में बीपी कभी कभी नॉर्मल जिनका था पहले वो बढ़ जाता है. तो जिन पेशेंट्स का कभी बीपी का कभी कोई शिकायत नहीं थी, वो प्रेगनेंसी में उनकी बीपी बढ़ गई, उसको बोलते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन. और इनमें कभी आई चेंजेस भी होने लगते हैं. जैसे हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी है, वैसे PIH इंड्यूस्ड रेटिनोपैथी भी होती है. जी. और इस रेटिनोपैथी में वही सेम चीज़ होने लग जाती है, पीछे के पर्दे पे एक्सुडेट्स बन जाते हैं, हेमरेजेस बन जाते हैं. ये रिवर्सिबल है, तो इसका मतलब ये नहीं है अगर आंखें खराब होने लगी तो आप अपनी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करा दीजिए, नहीं. ये रिवर्सिबल है. प्रेगनेंसी खत्म होते ही आपके पीछे के पर्दे पे जो जो चेंजेस आए हैं वो ठीक हो जाएंगे. सो यू आर नॉट गोइंग टू टर्न ब्लाइंड, बट येस इट डिपेंड्स ऑन दी स्टेज. आप ट्रीटमेंट ले नहीं रहे हो बिल्कुल, और वो इतना ज़्यादा रेटिनोपैथी हो गया है कि सॉफ्ट एक्सुडेट्स आ गए, उसमें ब्लड कर गया है, खूब ब्लीडिंग हो गई, तब यस देन यू कैन टर्न ब्लाइंड ड्यू टू प्रेगनेंसी इटसेल्फ, एंड इट इज डेंजरस फॉर यू एज वेल एज योर चाइल्ड. तब प्रेगनेंसी टर्मिनेट कुछ केसेस में करी जाती है. बट यूजुअली प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में जो आंखों में आपको तकलीफ हो रही है वो दवाइयों से कंट्रोल करना चाहिए, उसको ट्रीटमेंट दीजिए, अपनी प्रेगनेंसी कंटिन्यू करिए, और ये याद रखिए प्रेगनेंसी खत्म होते ही ये चेंजेस रिवर्सिबल है, आपकी आईज बच जाएंगी, विजन आपका नहीं जाएगा. जी. मैम, लाइक वी हैव टॉक्ड अबाउट दीज डिफरेंट कंडीशंस. सो जैसे आपने बताया कि प्रिवेंटिव मेजर्स हम ले सकते हैं, कब हमें सर्जरी करानी है, कब हमें मेडिकेशंस लेनी है. इसमें एक पॉइंट मैं जानना चाहूँगी कि जैसे हम बात करते हैं कि नेचुरोपैथी की, योगा एंड मेडिटेशन अबाउट दैट, तो डू दीज इम्पार्ट अ रोल, और इसका कुछ इफेक्ट होता है या करना चाहिए इसका? हाँ, योगा नेचुरोपैथी जो है बहुत अच्छी चीज़ है हमारे. इट्स नॉट टुडेज, इट्स अ वेरी ओल्ड फॉर्म ऑफ मेडिसिन.
अब किस कॉन्टेक्स्ट में आप पूछ रहे हैं ये मैं पूछना चाहती हूँ. अगर आप पूछ रहे हो कि कैटरैक्ट योगा से ठीक हो जाता है तो आई कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट इट, बिकॉज कैटरैक्ट योगा से ठीक नहीं हो सकता. बट कई लोग क्लेम करते हैं नेचुरोपैथी और योगा से कैटरैक्ट ठीक होता है, तो दे नीड टू गिव अस एविडेंस. जी. Today we are talking on evidence. It is not I am right or you are right. जी. We should have these many patients and this is the evidence. हमारे साइंस में कोई रिसर्च में ऐसी चीज़ नहीं बताई गई कि योगा और मेडिटेशन से कैटरैक्ट ठीक हो सकता है. हाँ, सेकेंड चीज़, योगा और मेडिटेशन से ग्लॉकोमा ठीक हो सकता है. स्टिल आई हैव नो एविडेंस ऑन दिस. ग्लॉकोमा तो प्रेशर कम करने से ही ठीक होगा. योगा और मेडिटेशन से रिफ्रैक्टिव एरर्स ठीक हो सकते हैं कि आपको चश्मा लगा हुआ है और योगा और मेडिटेशन से चश्मा उतर गया. इसका भी साइंटिफिक रिसर्च नहीं है. तो रिसर्च और एविडेंस तो हमारे पास किसी का भी नहीं है. बट येस, योगा एंड मेडिटेशन डेफिनेटली हेल्प यू इन अदर थिंग्स, इन कॉन्सेंट्रेटिंग, इन गेटिंग मेंटल पीस. In overall, yoga helps you in maintaining good physique. That will help in controlling your sugar levels and hypertension, BP. But once these changes have set in your eye, एक बारी ये सब चीज़ें आपकी आंखों पे प्रभाव कर चुकी हैं, फिर तो आपको ट्रीटमेंट ही लेना पड़ेगा. उसको रिवर्स नहीं कर सकती है योगा एंड मेडिटेशन. इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन आपने पूछा. बट किसी को भी हमें मना नहीं करना चाहिए कोई भी चीज़. बट ये चीज़ें आप करिए, लेकिन ट्रीटमेंट तो आपको इन कंडीशंस का तो आपको टाइम पे कराना चाहिए, अगेन बिकॉज दे आर प्रिवेंटेबल कॉजेज ऑफ ब्लाइंडनेस. जी मैम, अभी तक की जो हमने डिस्कशन की इसमें आपने डिफरेंट कॉजेज बताए, प्रिवेंटिव मेजर्स बताए, और अलग डिफरेंट स्टेप्स बताए, हमारी इम्प्रूवमेंट्स बताई जो भी इंडिया में है, और क्या नए नए प्रोग्राम्स चल रहे हैं टू प्रिवेंट ब्लाइंडनेस. इसमें हम आगे और जानना चाहेंगे कि फर्दर व्हाट आर द डिफरेंट पॉइंट्स regarding this and how to counsel the parents, how to provide proper guidance to the parents. हाँ, तो आप बच्चों की बात कर रही हैं. चाहे जैसे मैंने आपको बताया, बच्चों में चश्मा लगाने की जो है अप्रीहेंशन, पेरेंट्स को आप यही समझाइए कि आप इस समय आप सोच रहे हैं चश्मा नहीं लगवाना और पूरी ज़िंदगी लगा रहेगा, तो चश्मा तो वैसे भी बाद में लगेगा ही अगर आप नहीं लगवाएंगे आज. इनफैक्ट पावर बढ़ती जाएगी एंड द चाइल्ड कैन टर्न ब्लाइंड. तो काउंसलिंग में यही बताना चाहिए, पेरेंट्स को ये बताना चाहिए. अगर कोई अडल्ट है तो वो तो इतना समझदार है ही कि वो चश्मा लगा लेगा, पर बच्चों को तो हमें मोटिवेट करना पड़ेगा. यू कैन गिव फैंसी फ्रेम्स, यू कैन गिव गुड कलर्ड ग्लासेस and tell them that you're looking nice, you're looking good, and you are looking very intelligent. You have to make comments like that, and you have to make him socially acceptable. And you know, if people are commenting in family में people are commenting on the spectacles, you have to stop that habit. And अगर वो टीनेजर है 15-16 years के हैं तो थोड़ा और तकलीफ होती है चश्मा लगाने में, but then the option of contact lenses are always there. You can wear contact lenses 12 hours in a day. आराम से आप 8 से 10 घंटे तो पहन ही सकते हैं. रात को आप चाहे चश्मा यूज़ कर लीजिए. तो contact lenses will also serve the same purpose. And now the teenagers are getting very conscious of beauty. उनको लगता है बस एक हमें चश्मा नहीं लगना चाहिए, बाकी हमें कुछ भी हो जाए जी. तो और कॉन्टैक्ट लेंस भी नहीं हमें पहननी. तो उनके लिए एट द एज ऑफ 22-21 जब हमारी आई बॉल ग्रो होना पूरी हो गई है ग्रोथ, तो अब एक लेटेस्ट टेक्निक जो आ चुकी है हमारी कंट्री में, बहुत अच्छे से लोग कर रहे हैं, उसे बोलते हैं लैसिक. तो वैसे तो ये इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, पर लैसिक जो टेक्निक है वो चश्मा हटाने की सर्जरी को बोलते हैं. लेज़र ही होता है, उसमें कुछ नहीं है. कॉर्निया जो है उस पर लेज़र करा जाता है और उसकी थिकनेस कम कर दी जाती है, तो चश्मा की जो पावर है उतनी पावर कैलकुलेट करके वो ऑपरेशन हो जाता है और आपको चश्मा लगाने की या कॉन्टैक्ट लेंस लगाने की उसके बाद कोई ज़रूरत नहीं है जी. लैसिक के बारे में आपके क्वेश्चंस होंगे कई, तो वो ये है कि उसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है जो है. अभी वो इनिशियली तो है ज़्यादा, 30,000 से शुरू होता है फॉर 1 आई. बट आजकल बच्चे करवा रहे हैं, बच्चे अबव 21-22 ईयर्स, नॉट बिलो दैट. अब उसके पहले तो वो करेगा ही नहीं कोई डॉक्टर. अगर कोई करा रहा है तो वो गलत है, क्योंकि उसकी आई बॉल ग्रो हो रही है, अभी पावर फिर चेंज होगी. लैसिक कराने के बाद भी आपको, ऑपरेशन कराने के बाद भी आपको चश्मा लगाना पड़ेगा जी. तो 22-23 ईयर्स के बाद जब आई बॉल पूरी ग्रो हो गई है, देन यू कैन गेट रिड ऑफ द ग्लासेस, गेट रिड ऑफ द कॉन्टैक्ट लेंसेज, यू गो फॉर दिस सर्जरी. इट इज़ वेरी सेफ, इट टेक्स हार्डली 5 minutes एंड यू कैन गेट इट डन एट 1 sitting. मतलब आप सुबह जाइए, सर्जरी कराइए, दोपहर तक आपको घर जा सकते हैं. ओपीडी प्रोसीजर है, और सेम एक आई कराने के बाद दूसरी आंख में सिर्फ 4 या 5 दिन का अंतर में भी हो जाती है.
तो लैसिक जो है इसके बारे में भी अवेयरनेस अब हो जानी चाहिए। पेरेंट्स को तो यही काउंसिल करना चाहिए कि आप चश्मा पहनवाइए, बच्चों की आंखों के लिए ये बेटर है। और दूसरी विटामिन ए में जो मैंने बताया, जो ज़ीरोफ्थैल्मी है, उसमें भी पेरेंट्स का ही रोल है। आप उनको खाना खिलाना पड़ेगा, बच्चे अपने से नहीं मांगते ये चीज़ें। कैरेट जूस के फॉर्म में, बहुत अच्छे जूस के फॉर्म में दिया जा सकता है। और पपाया और मैंगो का सीज़न है तो आप खूब खिलाइए पपाया, मैंगो। और जो ये है इसका ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, इसका मैंने आपको जैसे बताया, आप डाउ में मिक्स करके इसका पराठे बना के आप खिलाइए जी। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें बटर और जो मार्गरीन आता है, बट हमारे यहाँ नहीं यूज़ होता इतना मार्गरीन और चीज़ स्प्रेड्स और ये फिश एंड कॉड लिवर ऑयल। तो बटर कैन बी यूज्ड एंड एटलीस्ट 1 टीस्पून, अराउंड 10 to 15 ग्राम्स में कोई उसमें नहीं है नुकसान। छोटे बच्चों में बटर दीजिए। विटामिन ए फोर्टिफाइड फूड्स भी आते हैं कुछ कंपनीज, अब विटामिन ए फोर्टिफाइड मतलब उसमें विटामिन ए मिला हुआ है, ऐसे जूसेस और फूड आते हैं। पेरेंट्स को काउंसिल करिए, आप बच्चों को रोज़ ज़रूर दिन में 1 आइटम ऐसा खिलाइए। तो ये चीज़ें तो प्रिवेंट हो गई। और ट्रेकोमा और वो जो पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में बीमारी है, वो उसमें आपको सफाई के बारे में काउंसिल करना पड़ेगा। और एक को अगर हो गया है पेशेंट को, तो आपको समझाना पड़ेगा कि आपको इसका सेपरेट हैंकरचीफ, सेपरेट टॉवल, सेपरेट कपड़े रखने हैं जब तक इसका आंखों से डिस्चार्ज हो रहा है। और उसको ले जाके आप ये आई ऑइंटमेंट जैसे टेट्रासाइक्लिन या एरिथ्रोमाइसिन खिलवाइए। और अगर बाकी आपको रिस्क लगता है तो पेरेंट्स को आप ये काउंसिल कर सकते हैं कि बाकी फैमिलीज भी प्रिवेंटिव वो टैबलेट खा सकती है। तो ये पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में तो आपको सैनिटरी मेजर्स और दवाई जो टाइम पे करनी है ये बताना पड़ेगा। जी, हमने अभी तक बात करी डिफरेंट कॉजेज एंड देयर ट्रीटमेंट एंड देयर प्रिवेंटिव मेजर्स। तो अभी हम जानना चाहेंगे आपसे कुछ जनरल नॉर्मल विजन क्लूज के बारे में कि व्यूअर्स को पता होना चाहिए कि उनको टीवी कितने डिस्टेंस से देखना है, पढ़ाई कितने डिस्टेंस से करनी चाहिए। हाँ, तो ये सेंटीमीटर्स और इंचेस का जो हिसाब है ये नहीं हम देख पाते, कॉमनली हम भूल जाएंगे। मैं आपको बताऊंगी। तो आप बस ऐसे देखिए कि जब आप टीवी देख रहे हैं तो आप इतनी दूर से देखिए कि हमेशा टीवी एक तो हमारी आंखों के लेवल पे फिक्स होना चाहिए, टीवी नीचे नहीं होना चाहिए। तो अगर आप दीवार पे, जो सबसे अच्छी चीज़ होती है, आप स्टैंड लगवाइए दीवार पे। और बच्चों के रूम में टीवी नहीं होना चाहिए, डाइनिंग टेबल के सामने टीवी नहीं होना चाहिए। तो टीवी के लिए एक ही जगह रहती है, ड्राइंग रूम। जी, अलग रूम करिए टीवी का, दीवार पे लगाइए। और एटलीस्ट उसका डिस्टेंस 1/2 to 1 मीटर तो होना ही चाहिए। मतलब कि टीवी जो है गर्दन ऊपर होके और नीचे होके ना देखे, टीवी हमारे लेवल पे दिखे सामने। समझ रहे हैं आप? ठीक है। दूसरा, LCDs आजकल आने लगे हैं तो उसकी स्क्रीन बहुत बड़ी होती है। इट इज़ अ स्ट्रेस टू द चाइल्ड्स आई। इन दैट केस द डिस्टेंस हैज टू बी डबल्ड, 1 मीटर डिस्टेंस पे जाके देखना चाहिए। पर हम लोग LCD अपने छोटे रूम्स के घरों में लगा रहे हैं तो उससे बड़ा स्क्रीन दिख रहा है और उसकी वजह से टीवी पे स्ट्रेस पड़ रहा है, आईज पे स्ट्रेस पड़ रहा है। जी। अच्छा, डिस्टेंस जो पढ़ाई का है वो इतना होना चाहिए कि एटलीस्ट आप अगर टेबल चेयर पे पढ़ेंगे तो नॉर्मल टेबल चेयर पे जो डिस्टेंस है वो 1 आर्म्स लेंथ बोलते हैं। जी। तो 1 आर्म्स लेंथ आप देखिए, अगर इतने डिस्टेंस पे आप पढ़ रहे हैं तो ठीक रहेंगे। बच्चे क्या होते हैं कि बुक्स जो हैं वो स्टोरी बुक्स पढ़ना है तो पढ़ाई की किताबों के अंदर रख के और उसको अपने ब्लैंकेट के अंदर रख के ऐसे पास से पढ़ते हैं। दैट कॉजेज स्ट्रेन ऑन दी मसल्स। सो कॉमनली ये प्रॉब्लम्स आती हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। टीवी देखना, 10 घंटे टीवी देख रहे हो आप इन अ डे, डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू पुट अ स्ट्रेस ऑन योर आईज। बट यू कैन वॉच 3 to 4 hours अ डे टीवी, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। टीवी को ही ब्लेम करके और बाकी चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट ना करना गलत है। जी। तो टीवी देखना कोई बुराई नहीं है, इट कैन बी सीन। बस ये है कि 3 to 4 hours इन अ डे इज ओके, परमिसिबल। जी मैम, like the today's discussion was on the preventable causes of blindness. Yes. So finally we would like to ask you कि आप किन important points को बताना चाहेंगे हमारे viewers को कि that should be emphasized. हाँ, बस यही है कि जब आपकी आंखों में कोई अगर इन्फेक्शन है, डिस्चार्ज है, पानी आ रहा है, आप एक उसको आई स्पेशलिस्ट को दिखाइए जाके, उसकी ट्रीटमेंट लीजिए और कोशिश करिए अपना पर्सनल हाइजीन रखने का। सिंपल कंजंक्टिवाइटिस भी इसीलिए फैलता है बिकॉज हम हैंकरचीफ और टॉवल शेयर करते हैं। जी। एंड दूसरा, डाइट के बारे में मैं फिर से स्ट्रेस करना चाहूँगी। बहुत पेनफुल होता है एक बच्चा जब ब्लाइंड होता है सिर्फ विटामिन ए की कमी से, जो हमने देखे हैं पूरा कॉर्नियल अल्सर हो जाते हैं, आँख बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो जो बच्चा पूरी लाइफ देख सकता था वो सिर्फ खाने की कमी से ब्लाइंड हो रहा है, दैट इज़ अगेन अ फॉल्ट एंड इट इज़ नॉट द चाइल्ड्स फॉल्ट। जी। तो अगेन आई एम स्ट्रेसिंग, आई वुड लाइक टू स्ट्रेस एंड रिक्वेस्ट कि आप ये डाइट का ध्यान रखिए, विटामिन ए ड्रॉप्स पिलाइए बच्चों को,
एंड थर्ड थिंग विच आई वुड टेल इज कैटरैक्ट. बड़े लोगों के लिए आप मत जाइए इधर. नेचुरोपैथी और इसमें योगा में और मेडिटेशन से आप ज़रूर आप बेटर फील करेंगे, बट इसमें आप कैटरैक्ट को मत इंक्लूड करिए. कैटरैक्ट का ट्रीटमेंट सर्जरी है, आज नहीं तो कल सर्जरी होगा, जल्दी करा लेंगे तो बेटर है. पर हाँ, पैनिक मत करिए, सर्जरी बहुत छोटी है, 15 से 20 मिनट. गो टू अ गुड हॉस्पिटल, डू सम रिसर्च अबाउट इट एंड गेट द सर्जरी डन. जी. मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी. फॉर चिल्ड्रन अबाउट विटामिन ए, फॉर अडल्ट्स अबाउट कैटरैक्ट, डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंसिव पेशेंट्स को मैंने वही बताया है कि आपको टाइमली चेकअप अप कराएंगे, वो चीज़ टाइम पे पता लग जाएगी और उससे लेज़र से वो ट्रीटमेंट हो जाएगा. जी मैम, जैसे कि आपने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे साथ डिस्कस करे रिगार्डिंग द कॉजेज एंड द प्रिवेंटेबल मेजर्स फॉर द ब्लाइंडनेस, और उसमें हमने बात करी थी डिफरेंट कंडीशंस के बारे में, कंडीशंस लाइक ट्रैकोमा, ग्लोकोमा, डायबिटिक रेटिनोपैथी और इन तरह की और कंडीशंस जो एज पे डिपेंड करती हैं कि जैसे बच्चों को हो है या एडल्ट्स को हो रही है या ओल्ड एज में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और उनके कॉजेज़ को ध्यान में रखते हुए हमें किस तरह के मेजर्स लेने चाहिए, हमने उनकी बात करी. डिफरेंट प्रिवेंटिव मेजर्स, इट कैन बी द सर्जरी, द मेडिकेशंस, द आई ड्रॉप्स दैट आर एक्सपर्ट हैज टोल्ड. Thank you so much ma'am for giving these informations to our viewers. So we know that eye is an important sensory organ to see the world, so make your life beautiful. Thank you so much.